We really appreciate that. And next time we are thinking that we'll give a thinking, we have to do it. We will give a good time for the meeting. And this time the meeting was delayed because of September tax audit and all that. We couldn't have last two meetings. That was for the month of September and for October. So we have missed two meetings. Minesh bhai, barobar na? So next we have to do all the four meetings. So that is our target. Apart from that, I think Yash is online and Shreya is online. You can hear us? Yes, you are there, Shreya. They are not there. So they must be waiting. And where is Kunal? So today's topic will start with the topic. Today's topic is practical challenges with the current situation, what we are facing in RERA extension, RERA registration or RERA correction. So today's session is only of discussion, sharing your experience, what you had in last 1 month with RERA authorities in different types of application. What is the way forward? How we have to plan? And as a professional, what take care or what guidelines we have to follow, and how we have to see to it that we have a proper system in our office also to tackle the clients. Many times what happens that the client has received further approval, he doesn't inform us on time. So after 1 month, 2 month, 3 months, we come to know कि भाई अभी तक तो 5 माले का approval था. Now he has received an approval of 10 floors. And when we go for a correction, then RERA has a questionnaire. Okay, why you have not done the application within 7 days? Because law says that any changes in the plan, any update in the plan has to be updated on the RERA portal, or an application has to be made within 7 working days. In the earlier portal, we had that liberty. Okay, if there is any change in plan or any further approval, we would have directly uploaded and we could change the inventory. In current Mahakriti portal, they have blocked it. So if we have a CC up to 5 floors, the inventory up to 5 floors only will be disclosed. Further, when we receive further approval, then we have to update the inventory. We have to make an correction application to RERA for the changes. And after that it is approved, the same will be reflected online. So many times now bankers are having queries. You are taking the disbursement, but your approval is only up to 5 floors. It is not updated on the portal. So it has become difficult to explain the bankers also with private banks, HDFC, ICICI, they have a good RERA team. So they are taking all these objections. And when the money is stuck, the builder is behind us. So in this case, how we have to keep the data, we need to educate the client also कि भाई तेरे को approval आने वाला है, तो at least हमें 15 days पहले बताओ. So we can plan for, as you as you know, if there is change in plan or further FSI also, we have to make a correction application with 2/3 signature. So in this Mahakriti portal, we have to make an application with 2/3 signature. In earlier system, there was no such process. So getting the signature, timely uploading the document, after uploading the document, how RERA is vetting how the desks are clearing the file, it has become a challenging job. As far as our earlier projects, which were launched 2 years, 3 years back, in that how we have to plan the projects which are going to come in future, the projects which we have registered in last 6 months, 1 year, how we have to tackle them. We have to make a system in our office, so we have the records. So I'll tell you with one small example. So now what we have done, we have made a list of projects which are expiring before 31st December 2025. So if you see, the many times we put a deadline which is year end, calendar year end, कि भाई December 25 डालते हैं, 26 डालेंगे तो आंख में आता है. So in many cases you will find that now many of our projects also, if you see in our office also, many of the projects are on the verge of expiry. So what strategy we have made for the extension? Have we got the documents from the client? Are we ready with the papers? So we have to be one step ahead now for planning the clients.
and we need to educate the client also. Okay, bhai, all this information has to be updated. So now if you see, as of now today, anyone have recently made an application in last 10 days for extension correction? यस सर, मैंने किया था लेकिन अभी तक वो प्रोसेस ही नहीं हुआ है, मतलब इट हैज नॉट बीन टेकन अप बाय द अथॉरिटीज इटसेल्फ। हाँ, अभी 12 तारीख को दे हैड मीटिंग एंड दे हैव रिवाइज्ड देयर गाइडलाइंस आल्सो। तो अभी मैंने तो लास्ट दिवाली के टाइम किया था, वो भी अटका पड़ा है। मेरा मेरा एक था वो हो गया फास्टर, इट वाज फास्टर बट आई डन सम मंथ्स बिफोर। हाँ, बिफोर 12th, नो? Yes, before 12th. So it was done very faster, but they need proper documentation for process of the correction application. मतलब तो वो यश, लोग, यस यस सर, आपका एप्लीकेशन का डेट क्या है, इफ यू रिमेम्बर? मेरा मेरा एप्लीकेशन का डेट है सर 19th ऑफ अक्टूबर, 19 Okay. अक्टूबर। हाँ, और एप्लीकेशन इज फॉर करेक्शन एक्सटेंशन व्हाट? एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन। सो डेस 1 में प्रोसेस हुआ ही है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, लिया ही नहीं। ये करो, ऑनलाइन कंप्लेन करो तो हो जाए। नेक्स्ट 1 में से निकलेगा मैं- तो ही आपका प्रोसेस। हाँ, वहाँ पे एक्चुअली क्या है जो मैंने समझा, मतलब मैं बहुत सारे वहां से इंटर्न लोगों से भी बात किया कि इट ऑल्सो डिपेंड्स कि डेस्क 1 पे कौन से ऑफिसर के पास आपका गया है, बिकॉज विद ड्यू रिस्पेक्ट ये लोग सब रिटायर्ड ऑफिसर्स है, तो कोई ऑफिसर क्या करता है, पूरा थरोली पूरी एप्लीकेशन चेक करता है और उसको टाइम लगता है वो सब चीजें चेक करने में। जो यूज टू है ये सब चीजों को, वो फटाफट आगे बढ़ाते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट दिस थिंग्स, ऐसा है। नहीं, बट आपको कुछ रिप्लाई नहीं आया क्या अभी तक? कुछ भी नहीं आया। तो कुछ फिर तो भी बहुत नहीं टाइम आया। लग रहा है, तो कहीं पे तो अटका है, आप जाके उसको फॉलो। हाँ। एसआरओ कौन है आपका? एसआरओ एसआरओ हमारा नरेडको है। मैं परसों पर्सनली जाके आया वहां पे। सो एक तो क्या हो रहा है, इनके बहुत सारे मीटिंग्स चल रहे, तो दे आर कंटिन्यूअसली इनटू सम और द अदर मीटिंग्स। और इन लोगों का जो ओल्ड पोर्टल, इन लोगों को खत्म, मतलब ओल्ड पोर्टल पूरा बंद करना है, तो ओल्ड पोर्टल के ऊपर जो भी एक्सटेंशन या करेक्शन के एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो लोग शायद से वो डिस्पोज ऑफ करने में बिजी है, ऐसा मेरे को मतलब वहां पे समझा, ऐसा है। बरोबर, दे आर वर्किंग ऑन दैट। बट ये आपका ओल्ड पोर्टल पे है क्या? नहीं, मेरा न्यू पोर्टल पे है सब चीजें, बट स्टिल। ठीक है, बट आपका बहुत ज्यादा टाइम हो गया सर। मेरा बोलना मतलब ये है कि इतना टाइम तो कुछ भी नहीं लगना चाहिए था। तो यस तो क्योंकि मेरा दिवाली के टाइम था, वो मैंने अभी किया है, अभी तो वो ऑलमोस्ट डन है, बराबर। वो Right. टेक्निकल मेरा तो क्या हुआ, सेट वन डेस्क 1 टेक्निकल वो क्लियर भी हो गया मेरा डेस्क 2 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12 तारीख को ही हुआ। 12 तारीख को डेस्क 1 से Okay. निकल गया था, वापस से डेस्क 2 वाले ने डेस्क 1 में फीडबैक किया, एज पर न्यू मीटिंग का गाइडलाइंस है, वापस डालो। अच्छा, तो मैंने बाकी का तो- सब डाल दिया है अभी, और मैं Okay. कंटिन्यूअसली मतलब मेरे ऑफिस से स्टाफ फॉलो अप करते ही रहता है ऐसा। तो सर ये न्यू गाइडलाइंस क्या है, मतलब जो उनको इंटरव्यू मिले हैं, अगर मतलब माइनर चेंजेस है उसमें, जैसा भी 1 2 3 हम लोग जो डालते थे ना, वो लास्ट पेज में साइन लेते थे, तो ये लोग को हर एक Right. पेज में साइन दिए। और जितना भी हमारा अपडेशन हुआ है, बराबर है, जो भी Right. अपडेशन हुआ है वो सब हम लोग अभी उनको देना है। अगर आपका अपडेशन नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ उसका डिक्लेरेशन देना है आपको, फिर आपका पद डालना है, फिर और भी जो एप्लीकेशन है ना, उसमें जो फर्स्ट बॉडी है ना ऊपर का, जहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर लिखते हैं, प्रोजेक्ट एक्सटेंशन डेट लिखते हैं, वो जो है वो हर एक पेज को रिपीट चाहिए। द टेबल सोल्ड अनसोल्ड वाला, बराबर। सोल्ड अनसोल्ड वाला वो क्या जो है, चाहिए, वो हर एज एक ऑन पेज डेट पे चाहिए। repeat। नहीं, एवरी ऑन एवरी पेज दे रिक्वायर। फॉर हाँ, एग्जाम्पल हाँ। मतलब, फॉर एग्जाम्पल हम लोग Yes, लिखते थे दिस मच यूनिट सोल्ड एंड दिस मच, मतलब टोटल यूनिट्स सोल्ड और अलॉटेड, एंड वो था ना नंबर ऑफ यूनिट, Right, वो जैसे right, लोग बोल right. रहे हैं कि एवरी पेज में वो भी लिख के दो। हाँ, वो भी। और एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। नहीं, अगर आपको लास्ट पेज में लिखे हाँ, एक ही बार लिखते थे उनको उनको एवरी पेज में ऊपर लिख के दो इसको। और प्रमोटर का भी हर एक पेज हाँ, पे हर एक पेज में प्रमोटर का साइन चाहिए, हर एक पेज में सब जगह सबका साइन चाहिए। ऐसा। और सर वो 14:2 वाला भी बोलते हैं अभी, जो मेरे को समझा है कि आप Related टेबल में party. जैसे
हाँ, अगर जैसे सपोज मैंने एक कस्टमर को 3 फ्लैट बेचे, तो मेरा सोल्ड अनसोल्ड एज पर फॉर्म 3 और एज पर सोल्ड अनसोल्ड और ये एक्सटेंशन एप्लीकेशन वो टैली होना चाहिए। फिर एक नीचे रो इंसर्ट करके एज पर सेक्शन 14(2) वो क्या बोलता है कि अगर 3 है तो भी एक गिनेंगे, तो वहां पे भी उतने नंबर ऑफ इतने कम करके लिखने चाहिए ऐसा। और एक ये नया आया है। अभी नए पोर्टल में वो एप्लीकेशन किया है आपने यश? हाँ हाँ, नए पोर्टल की बात कर रहा हूँ सर मैंने अभी तक जितने भी किए हैं सब नए पे ही किए हैं। तो ये भी वो लोग मांग रहे हैं कि जहाँ पे अगर मैंने एक्सटेंशन एप्लीकेशन किया है, कंसेंट दिया है लोगों के, और वहां पे जो लोगों के कंसेंट है वहां पे किसी के एक 2 फ्लैट के सामने सेम नाम है, तो वो बोलते हैं कि जो ऊपर टेबल आपने दिया है टोटल नंबर ऑफ सोल्ड और कंसेंट ऑब्टेन, तो उसमें और एक कॉलम इंसर्ट करो और एक रो इंसर्ट करो, और वहां पे एक लो कि एज पर सेक्शन 14(2), और वहां पे जैसे 10 मेरे टोटल कंसेंट लिए, उसमें से 2 लोगों के डबल है, तो वहां पे 8 लिखो, 8 में से फिर 50% हाँ लगेगा, ऐसा उनका बोलना। तो ये भी एक रो हाँ इंसर्ट करने को उन्होंने बोल रहे हैं वो हर जगह। हाँ हाँ, मतलब समझा मैं, मतलब एक ही जन का 3 फ्लैट है ना, तो उसको एक ही गिनना है। हाँ वो तो पहले भी राइट बोल राइट राइट। सो तो यश, ये भी एक रो नीचे से इंसर्ट करना है, उन्होंने ऐसा बोला है वो टेबल में। सो सिमिलर एप्लीकेशन में नेक्स्ट वीक करने वाला था, तो मैंने एसआरओ को कॉल किया राइट। था, उसको भी बहुत कंफ्यूजन था, तो आपने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। मैं चाहे तो सर वो फॉर्मेट भी जो है ना, जो हमने, क्योंकि हम तो छोटे टाउन से, तो यहाँ पे क्या है, कई कई लोग 2-2 3-3 फ्लैट ले लेते हैं। तो बरोबर, यहाँ पे क्या है, ऐसे कॉमन इश्यूज है ये हमारे यहाँ पे। तो समझ वो गया। फॉर्मेट्स भी जो हमने बनाए हैं ना, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, तो फिर क्या है, अपने को हाँ सिमिलर आप ग्रुप रहेगा में शेयर सबके कर लिए। दो, बरोबर है, आप ग्रुप में शेयर कर दो, दूसरे मेंबर्स को भी उसका बेनिफिट होगा। यस यस। एंड रिहैब का भी इसमें साइन नहीं लगता व्हेनेवर वी आर टेकिंग एक्सटेंशन और रिहैब का नहीं लगता। हाँ हाँ, तो वी हैव टू मेंशन इट एज अ रिहैब whenever we are doing extension correction application, so we should make sure कि rehab का जो काउंटिंग है वो भी हमको एक्सक्लूड करना है। तो जो हम लोग नीचे रिकंसिलिएशन प्रोवाइड करते हैं, तो वी हैव टू गिव अ प्रॉपर रिकंसिलिएशन, टेबुलर रिकंसिलिएशन कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लैट्स डुप्लीकेट हुए, या मतलब डबल मेंबर्स को हम लोग सिंगल मेंबर्स काउंट कर रहे हैं, और फिर कितने रिहैब मेंबर्स हैं। तो हम लोग तो एक छोटा टेबुलर डाल देते हैं नीचे लास्ट में, हाउ वी आर इसमें हस्बैंड के नाम से एक रहेगा, वाइफ के नाम से एक रहेगा। तो दो कंसेंट लगेगा, दो लोग अलग। काम भी तो होगा ना, एक ही नहीं होगा ना। इवन इवन कभी कभी क्या होता है, मतलब मैं फर्स्ट ओनर हस्बैंड है, सेकंड ओनर वाइफ है, और सेकंड ओनर वाइफ है, फर्स्ट ओनर हस्बैंड है, तो जनरली ऐसा डालते हैं ना, फर्स्ट ओनर का नाम डाल के वो साइन देते हैं। तो दैट शुड बी काउंटेड एज वन। टू 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 होगा ना, डिफरेंट। टू डिफरेंट और वन? नहीं नहीं, टू। अगर दोनों जॉइंट ओनर, नहीं जॉइंट ओनर। 2 फ्लैट है, एक हस्बैंड के नाम पे, एक वाइफ के नाम पे। एक हस्बैंड के नाम पे फर्स्ट नाम हस्बैंड का है, सेकंड नाम वाइफ का है, मतलब सेकंड फ्लैट में फर्स्ट नाम वाइफ का है, तो दैट विल बी ट्रीटेड टू। जैसे बट ये जैसे कुणाल बोल रहा था ना, जैसे मैंने रिकंसिलिएशन करके दिया ना, तो ये लोग ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वापस से साइन करना पड़ा मेरे को। मैंने ऐसा बना के दिया, जैसे आउट ऑफ 40 फ्लैट्स 18 गिवन टू एक्सिस्टिंग मेंबर्स, और ऐसा करके मैंने प्रॉपर बना के दिया। ये लोगों को चाहिए नहीं था, तो ये लोग बोला ऐसा ही नहीं चाहिए, अलॉट हमको एग्जिस्टिंग टेनेंट का डालो ही मत, आप सिर्फ ये डाल दो। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, मतलब केस टू केस दूसरे ऑफिसर के पास गया होगा। नहीं, अभी न्यू पोर्टल में तो क्या रिहैब का अलग से दिख जाता है मार्केटिंग पोर्टल पे। पोर्टल की बात करो, लेकिन हाँ नहीं, तो उनको थोड़ा वो क्लैरिटी हो गया। अर्लियर में वी यूज्ड टू गिव दिस टेबल। लोग बोले नहीं चाहिए हमको, सिर्फ सोल्ड का ही चाहिए। There are 2 flats. In both flats, first name is husband, second name is wife. In both flats, same order. तो फिर that will be treated as one. रिहैब में एडिशन परचेस होगा? हाँ, नहीं नहीं आएगा। वो आएगा ही। For that, you have to adjust the order. Which first in one order, husband, second should be wife. हाँ वो ठीक है, वो मतलब आउटसाइडर को जो बेचा है उसमें 51%। हाँ रिहैब में हाँ डिपेंड करता है, अगर एक्सटेंशन है तो 51% और करेक्शन है तो 2/3। 67. और एडिंग टू दिस फर्दर, नाउ इफ यू मेक एन एप्लीकेशन, सो हम अर्लियर जब एप्लीकेशन करते थे एक्सटेंशन का, तो हम कभी वो प्लान से उसकी इन्वेंट्री मिसमैच रहती तो हम उसको इग्नोर करके एप्लीकेशन कर देते थे,
ऑफिसर भी उसको इग्नोर करता था और अप्रूवल आ जाता था विथ वॉट एवर देयर क्वेरीज. नाउ दे हैव डिसाइडेड कि जो टेक्निकल ऑफिसर है उसके पास जब वो फाइल जाएगी तो आपकी जो इन्वेंट्री है एज पर लास्ट प्लान इट हैज टू बी अपडेटेड ऑन द पोर्टल. आपकी एफएसआई भी आपके लास्ट अप्रूव्ड प्लान के साथ मैच होनी चाहिए. अगर वो नहीं है तो भी उन लोग क्वेरी निकाल रहे हैं और क्वेरी निकाल के जो एप्लीकेशन इन प्रोसेस है उनको बोल रहे हैं कि आप एक स्टैम्प पेपर पे डिक्लेरेशन दो कि वंस वी approve your extension within 7 working days you will make the correction application. So हमें ये ध्यान रखना है कि अभी हम एप्लीकेशन करते टाइम अगर वी कैन करेक्ट दैट डेटा या अभी किसी को हम फर्स्ट टाइम माइग्रेट कर रहे हैं तभी भी वो ध्यान रखना है कि सब प्लान टू प्लान मैच करके हम माइग्रेट करें. और जो हम एडिट कर सकते हैं विच मैचेस विद द प्लान तो वी हैव टू डू राइट नाउ ओनली. बस शशांक सर प्रॉब्लम ये है ना, जब माइग्रेशन कर रहे हैं तो एडिट करने नहीं दे, यूनिट्स करने दे रहे, एफएसआई नहीं करने दे रहे. ऊपर वाला नहीं करने दे हाँ. रहे, तो वो मिसमैच है. वो मिसमैच वो है. तो वो उसका फिर हमको अभी जब करेक्शन में जा रहे हैं ना तो हम लोग को डिक्लेरेशन मांग रहे हैं. अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं ना जो बरोबर बरोबर डिक्लेरेशन मांग रहे हो कि विद इन 7 वर्किंग डेज में 7 दिन में आप इसको जैसे आपका ओपन होगा 7 दिन में इसको करना पड़ेगा. ऐसे डिक्लेरेशन ले रहे हो. टास्क एक्टिविटी का भी सब यस करके रखा है. हाँ सब जो ऑटो पॉपुलेट हो गए. या नो रहेगा तो भी वो रेस्पेंट कोडियम यस करके रखा है. राइट राइट. तो लेकिन टेक्निकल क्वेरी रेज करेंगे तो इमीडिएट इवनिंग तक सॉल्व हो जाएगा. So as we discussed के now we have to match everything with plan. So henceforth when we do a registration we have to keep a record in our office कि भाई ये बिल्डिंग का 4 माला का या सीसी आ गया है, टोटल प्रपोज 12 माला था. तो वी टेक अ लेटर फ्रॉम एन आर्किटेक्ट, वी कीप दैट इन अ रिकॉर्ड एक्सेल शीट में. क्योंकि व्हेन यू आर डूइंग अ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ट्रैकिंग रखना बहुत डिफिकल्ट है कि किसका क्या प्रपोज है. अच्छा एमसीजीएम पे है सो वी कैन गो एंड चेक कि भाई आगे वी हैव रिसीव्ड द एक्सटेंशन और नॉट. जो ऑफलाइन मोड में है, म्हाडा में है, सिडको में है, इफ आई टॉक अबाउट मुंबई जुरिस्डिक्शन और थाना, तो वहां पे हम चेक नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वी नो के क्या काम हुआ है. सो वी हैव टू बी इन टच विद द क्लाइंट टीम टू अंडरस्टैंड के प्रैक्टिकली क्या काम चल रहा है. सो वी अपडेट आवर टीम ऑल्सो कि भाई ये अभी आया तो एक बार उसके अकाउंटेंट से बात कर ले कि कोई नया फर्दर अप्रूवल आया है क्या. व्हेन वी सेंड एन ईमेल टू देम वी स्पेसिफिकली मेंशन कि इफ देयर इज एनी अप्रूवल काइंडली शेयर विद अस. बिकॉज ये सब अभी रह रहा टेक्निकल टीम उनकी बहुत स्ट्रिक्टली स्क्रूटिनाइज कर रही है एंड दे आर वेरी क्लियर कि ये नहीं होगा तो हम आपको एक्सटेंशन नहीं देंगे. और इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. जैसे अभी सर ने बताया यश ने कि उनका एक एप्लीकेशन अटका हुआ है 19 अक्टूबर से, दिवाली के आसपास से. तो ऑफिसर टू ऑफिसर डिपेंड कर रहा है. अब किसी ऑफिसर के पास चले गया वो सिर्फ लाइन से ही चलता है, वो बीच में देखता नहीं. उसमें भी वो देखता है कि भाई कौन सी एप्लीकेशन सबमिट वाली ज्यादा है, रीसबमिट वाली ज्यादा है, एक्सटेंशन वाली ज्यादा है, करेक्शन वाली ज्यादा है. उसमें से देख के वो खुद का डिसीजन ले रहा है. सो वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर. सो एज अ प्रोफेशनल वी हैव टू सी टू इट कि अपनी मिनिमम क्वेरी कैसे आवे. हम एक दूसरे की क्वेरी से लर्न करें कि भाई व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, ये इससे ये एप्लीकेशन किया तो इसको क्या तकलीफ आई, रिहैब वाली तकलीफ हो गई, जैसे एक्स्ट्रा एरिया का इन्होंने पूछा कि उसमें क्या है. तो ये सब चीजें हम डाल के हम किस तरह उनको एक्सप्लेन करें, दैट वी हैव टू सी टू इट एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. बट वी हैव अ लिमिटेशन कि आज मैं 10 प्रोजेक्ट ही कर रहा हूं तो मैं उतना ही सीख सकता हूँ. कुणाल के पास 20 प्रोजेक्ट है, मुझसे सीख सकते हैं ज्यादा. सो दिस स्टडी ग्रुप इज फॉर दैट वी प्रैक्टिकली डिस्कस व्हाट आर द इश्यूज एंड हाउ टू टैकल देम. सो एज दिनेश भाई सेड के 12 तारीख को उनकी मीटिंग हुई टेक्निकल टीम की. तो अभी तक उन्होंने कुछ राइटिंग में नहीं लाया है, कोई सर्क्यूलर या कोई ऑर्डर नहीं आया है. बट दे हैव चेंज देयर प्रोसेस, दे हैव चेंज देयर वे ऑफ लुकिंग इनटू अ फाइल एंड दे आर वेरी क्लियर कि ये टिक नहीं हो गए, ये आप मेरे को एक डिक्लेरेशन नहीं देते हो तो वी आर नॉट गोइंग टू अप्रूव द फाइल. बीच में उनका ऐसा था कि वो रिजेक्ट भी करने वाले थे फाइल, बट आई थिंक दे हैव टेकन अ लीनिएंट व्यू ऑन दैट. बोल रहे थे विड्रॉल करो, वापस से सब करो. सो यू विड्रॉ योर एक्सटेंशन एंड रीअप्लाई वैसा भी बोल विथ करेक्शन फर्स्ट. एंड जैसे मैंने बोला कि अभी आज मेरा 31 दिसंबर को एक एक्सटेंशन खत्म हो रहा है. मेरी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है रेरा में. बैंकर्स, काफी सारे बैंकर्स है जो अभी आपका रेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर रहे, फ्रीज कर रहे. सो दे हैव द सिस्टम में उनकी डेट एक पंच हुई है. वो सिस्टम में जब तक हम उनको जाके नहीं बताते कि मेरे पास एक्सटेंशन सर्टिफिकेट है या वो ऑटो फैच नहीं करता है कहीं से उसकी इंटरनल टीम, तो वो आपके डेबिट्स सब फ्रीज हो गए. पैसा इनकमिंग चालू है, आपकी डेबिट फ्रीज हो गई.
सो बिल्डर का जब डेबिट फ्रीज होगा तब वो आपके पास आएगा कि भाई अभी मेरा पैसा आ गया है, मैं कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे पा रहा हूँ, गाली खा रहा हूँ पैसा होने के बाद भी. सो ऑल दिस स्मॉल थिंग्स वी हैव टू प्लान इन एडवांस. सो एज आई सेड के एक्सटेंशन हमें एटलीस्ट 3 महीने पहले काम चालू करना चाहिए बिल्डर के साथ, 3 से 2 क्योंकि पेपर वर्क हम चालू करेंगे. 100%. आप थर्ड मंथ में सोचोगे तो 2-2.5 अभी हमारे भी जुलाई सितंबर उस बीच में आ गए तो वो एक्सटेंड होने वाला है. क्लाइंट का वहां पे टीम रहे. सो आप एटलीस्ट 1.5 महीने पहले 45 डेज पहले अप्लाई करो एक्सटेंशन, तो आपका 45 डेज खत्म होते होते एक्सटेंशन हाथ में आएगा. 100%. अभी तो फ्रेश एप्लीकेशन जल्दी हो रहा है और ये यस. अभी लास्ट टाइम मैंने फ्रेश एप्लीकेशन किया वो 11 दिन में हो गया, जैसा मैं बता रहा हूँ. और ये अभी जो है पूरा बहुत हाँ, समटाइम इट्स वेरी फास्ट. मतलब मेरा एक बार क्वेरी रिजॉल्व हो गया तो 4-5 दिन में ही आ गया ना. हाँ वेरी फास्ट, मूविंग फास्ट हो गया नए वेबसाइट से. एंड देयर आर सम बैंक्स इवन, मतलब इन आवर लोकल रीजनल बैंक्स, मतलब सिंकैटलिक करके, दे आर वेरी स्ट्रिंजेंट. दे डोंट इवन गिव यू द डेडलाइन फॉर द क्यूपीआर आल्सो. इन द नेक्स्ट quarter, in the first day they require form 1, form 2, form 3, then only they allow for the withdrawal part. So RERA gives a limit of 20 days but bankers do not give. So I also had a similar issue. बट अगर अर्लियर मेरा विड्रॉल लिमिट है तो नहीं तो तो नहीं ऐसा एक सिमिलर इशू मेरे साथ भी हुआ. वो बिल्डर ने 2 क्वार्टर नहीं किया था, तो बैंक बोलता है कि मैं भी पैसा ही नहीं दूंगा. मैं बोला वांदा नहीं, यू गिव मी इन राइटिंग अंडर विच प्रोविजन यू आर आस्किंग मी. तो उसके पास जवाब नहीं था. फिर उसके मैनेजर से बात किया कि आई एग्री के वी हैव डिलेड. जो पेनल्टी लगानी है वो रेरा लगाएगी. मेरे फॉर्म 3 में अगर मेरी विड्रॉल पावर है 1.25 करोड़ रुपया, मेरे बैंक में पैसा पड़ा है, तो वो तो आपको रिलीज करना ही पड़ेगा. तो उससे बोला सर अभी ये टाइम कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी. क्वार्टर वाइज अपने को देना है, बट बैंकर भी आपको बोल रहा है कि जैसे क्वार्टर कंप्लीट हुआ, सी मतलब फॉर एग्जांपल 30 सितंबर को आपका क्वार्टर कंप्लीट, बैंकर इज आस्किंग यू, आपको रेरा ने कब तक दिया है? 20 तारीख दिया है फाइल करने के लिए फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3. सो योर डिफॉल्ट स्टार्ट्स फ्रॉम विच डेट? 20th of January, 21st. So but bankers are telling us to provide those documents on the first or second of the quarter. So that गलत ही है ना. and तो क्लाइंट को एडवांस करो, वो बैंक में नहीं अकाउंट. but तो भी वो सबकी फैसिलिटी पे डिपेंड करता है. अभी एक बैंक कर रहा है, कल अभी मेरा ना फॉर्म किया उसके पहले का क्वार्टर 1 का, तो उसमें एलिजिबिलिटी है मेरा. हाँ मैं वही बोल रहा अभी हूँ. वो नहीं दे रहे. तो भी नहीं दे रहा था, वो गलत है ना. आपके साथ भी तो भी नहीं दे रहे. नहीं दे रहे. नहीं वो भी दे, नहीं हम लोग का भी नहीं दे. जैसे गाइडलाइन है क्वार्टर में उनको वो क्वार्टर का क्या कैपेसिटी है, विड्रॉल उतना ही देना है. हर क्वार्टर का आना चाहिए बैंक को मेरे ख्याल से डायरेक्शंस दिए. ऑर्डर 56 में वो लिखा हुआ है, बट इतना पूरा नहीं, क्लैरिटी से नहीं इतना क्लैरिटी से नहीं. क्लैरिटी से नहीं लिखा है, तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है. ऐसा देखा जाए ना तो एक्ट में भी जो देखा जाएगा क्यूपीआर में लिखा है, बट उसका क्यूपीआर का डेट तेरा 20 है ना सब. नहीं वो 20 के बाद का बोल रहे हैं. मैं 20 के बाद मैं भी समझता हूँ. हाँ 20 के बाद ही मांगना चाहिए ना. बट वो बैंकर्स नहीं समझ रहे, बिकॉज दे आल्सो डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स. ऐसा है. तो उनसे राइटिंग में लेने का. तो और आप राइटिंग में लिख के दे दो तो हम लोग तो. बाकी हमारा तो डेट 20 तारीख है रेरा. और देखो वो फ्रीज करने का तो कहीं पे है ही नहीं. रेरा जब बोलेगा ना उनको फ्रीज करने के लिए, तो वो फ्रीज करना डायरेक्ट फ्रीज करने का. फ्रीज का मेरा भी सिमिलर था. ऑर्डर 56 में ना देयर इज वन पैराग्राफ वेयर इट इज रिटन कि इफ इट इज नॉट वैलिड ना, तो दे हैव द अथॉरिटी में. इफ नॉट वैलिड मतलब मेरा वैलिड जब एक्सटेंशन का मतलब पीरियड खत्म हो गया मेरा. हाँ फिर वो freeze कर रहे हैं. फिर फ्रीज कर सकते. क्योंकि वो तेरा सर्टिफिकेट ही हाँ, खत्म हो गया. भाई वो दैट इज ऑल टुगेदर. हाँ ओके ओके. विड्रॉल ऑफ मनी मतलब क्वार्टर क्यूपीआर का आप बोल रहे हो. मैं बीइंग अ सीए मैंने उसको लिख के दिया वॉस विड्रॉल लिमिट तेरा ये. हाँ तो ही हैज टू गिव. तो तू बोलने वाला ही कौन है? बरोबर. तू तेरा ही काम करना. तो तू लिखो. He has to give that. तू लिख के दे दो, फिर लिख के दे दो, हम लोग फिर रेरा में कंप्लेंट करेंगे. दूसरा वाला पॉइंट है ना, जैसे ही फॉर्म 4 अपन सबमिट कर सीसी आप है, हाँ बैंक ऑटोमेटिक सब अकाउंट क्लोज कर दे. सब इंक्लूडिंग करंट अकाउंट, मतलब 30%. वो केस में अपने पास अलग तो अकाउंट रहता नहीं कभी कभी. तो मेरे पास जो पैसे आने वाले हैं, जो उनको अकाउंट गया है, उसका कैसा करना? नहीं बेसिकली हम लोग तो क्लाइंट को बोलते हैं आप जब भी हमारा स्टार्टिंग होता है ना, तो मैं मेरी बात बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ 5 अकाउंट रहना चाहिए. पहला हमारा नॉर्मल अकाउंट, 3 रेरा अकाउंट और एक स्टैट्यूटरी कंप्लेंट मतलब जीएसटी अकाउंट. जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी. जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी जो भी क्लाइंट का आया हम लोग को डायरेक्ट देने.
हम लोग 5 अकाउंट की बात करते हैं, रेरा के पास राइट है 3 अकाउंट क्लोज करना, बाकी 2 अकाउंट हमारा बचा है। एक बार ओसी आ गया, वो जीएसटी वाला अकाउंट भी आप कैसे भी यूज करो चलेगा। इवन ये भी है जीएसटी अकाउंट, क्योंकि हमारे रिकंसिलिएशन पर्पस के लिए रहता है, तो हम लोग उसको भी ऐसे करते हैं। बाकी करंट अकाउंट तो आपको बिल्डर का तो स्टार्टिंग से चलते रहता है, उसपे तो कोई बैंक का कुछ वो तो राइट ही प्रॉब्लम किधर है? नहीं वो क्या बोल रहे हैं लोन्स है, इनके इंस्टॉलमेंट आने बाकी है। मतलब बैंक लोन ना, तो मेरा अकाउंट चला गया और मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो वो मेरे को बैंक को कन्विंस करना पड़ेगा कि अभी मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, वो बैंक नंबर डालो भी ये बैंक, क्योंकि वो तो बैंक सीधा क्लोज ही कर देते हैं आपको। आप क्या करो, बैंक को बैंक इंटीमेट मत करो। वो क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ओसी आ गया, सीसी आ गया, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, फॉर्म 4 आ गया, तो वो जाके जैसे बैंक में सबमिट कर देना तो बैंक क्लोजर्स दी अकाउंट। आप क्या करो, एक बार फर्स्ट 2 क्वार्टर है ना जाने दो, और फिर बाद में वो अप्लाई बैंक में प्रोवाइड करो। मतलब वो ओसी के जो पैसा बचे हुए हैं ना बैंकर्स वाले, होम लोन वाले, वो एक बार ले लो, बिकॉज ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है। ये करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, या तो फिर बैंकर्स को नहीं, लेकिन बैंकर्स को जब आप बोलोगे ना कि मेरा ये ओसी आया और फॉर्म 4 आया, तभी वो करेगा ना, अदरवाइज क्यों करेगा? आप जाओगे ही नहीं उसके पास। नहीं वो भी बोल रहे 6 हैं महीने के बाद आप वो जाओगे। तो अपने को वो टैग करना है, लेकिन एक्चुअल लॉजिकली क्या तो मैं फॉर्म देने के बाद वो तो क्लोज ही कर देंगे, तो रेरा को उनको इंटीमेट करना पड़ेगा कि अच्छा उनको इंटीमेट ऐसा करना पड़ेगा कि वो ये चीज के लिए क्या सोल्यूशन है। सर इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि प्रोसेस को आप रेरा से चेंज भी नहीं करवा सकते हो। ये है कि एक आध महीना में से पैसा वसूल कर लो बैंकर का, और कुछ भी नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल वही है जो क्लाइंट अभी फॉलो कर रहे हैं। तो वो बैंक को लिख के देना पड़ेगा, बैंक को लिख के देना पड़ेगा भाई कि हमारा ऐसा ऐसा है और लोन के लिए तो यही अकाउंट दिया हुआ है, तो फिर नहीं, बैंक वाला नहीं सुनता। समझे नहीं, आप ओसी दे दिए ना, मुझे भी है ना सब अकाउंट क्लोज कर दो। एक आध महीना डिले करना ही पड़ेगा, और जिसका होम लोन है उससे पैसा वसूल जल्दी करना पड़ेगा। पूरा साल रखा हुआ है मैंने, जब तक बैंकर को मेरे को बताया नहीं तब तक कुछ नहीं। हाँ, और रेरा को भी कुछ ऐसा कुछ तकलीफ नहीं है। तेरा को एक बार फॉर्म 4 दे दिया तो हो गया। हाँ, वहां पे क्लोज हो गया क्लोज उसका। हो गया। हाँ, मेरे साथ भी नहीं हुआ था एक्चुअली, मेरे साथ नहीं हुआ। अभी मैं हमारा तो अभी भी जो 2 साल पहले भी प्रोजेक्ट बना उसका चालू है account। वो तो आपने रखा है सर, फॉर्म 3 आपको देना है, आपको फीस लेना है। नहीं, फॉर्म 3 के हमने तो रेरा में डाल दिया, तो काय का फॉर्म रेरा में तो बैंक से पैसा निकालने के लिए मेल भी आ गया, रेरा से भी मेल आ गया था। नहीं, बैंक से पैसा निकालने के लिए फॉर्म 3 में एलिजिबिलिटी नहीं बात, अभी क्यों चाहिए, नॉर्मल अकाउंट कर नहीं, रेरा अकाउंट ओपन है तो फिर तो मांगेगा ना फॉर्म 3। हाँ तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम्हारे पास विड्रॉल लिमिट है ना। नहीं, अभी जैसे आज के तारीख के जो बैंकर्स बोल रहे हैं कि हमें आपका क्यूपीआर चाहिए, तो वहां पे ये थोड़ा सा करंट क्वार्टर के फॉर्म ये अभी आगे नहीं खींच पाएंगे। अच्छा, तू बोल रहा है ऐसे है ना, तो तू फॉर्म 3 अपलोड नहीं कर रहा है, तू दे देना, और अगर मांग रहा है तो। अदरवाइज ना, हमने तो ओसी फॉर्म 4 भी दिया है ना, तो भी हमारा बैंक, जैसा मैं बैंक का नाम चालू रखा, हाँ, बैंक का नाम नहीं बोल रहा, लेकिन हमने तो फॉर्म 4 भी दिया तो भी चालू है। जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं जाती है चालू रखता है। नहीं, बट स्लोली स्टेडली दिस विल चेंज, बिकॉज सब उनके सिस्टम में आ रहे हैं, सैप में आ रहे हैं, उनकी जो रेरा ऑडिट्स हो रही है, उनकी जो इंटरनल टीम है वो डे बाय डे सीख रही है, तो वो उसको पता है कि किस तरह काम हो रहा है, वो सब सिस्टम में डाल रहे हैं। मैनेजर बोलता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपका ये सिस्टम में मेरी रेरा टीम अलग है, वो वहां से मैनेज करती है, आप उधर मेल करूंगा मैं, उसका जवाब आएगा तो होगा काम, नहीं तो सर कुछ नहीं होगा। ऑर्डर नंबर 56 में क्लियर कट दिया है, बैंक shall suspend withdrawals transfers from all the accounts of the project upon lapse of registration। lapse तो मतलब वही expiry of your project। लैप्स इज डिफरेंट थिंग भाई। लैप्स मतलब क्या हो गया, अभी तुमने एक्सटेंड नहीं कर दिया, तुमको लैप्स। हाँ तो वही बोल रहा हूँ। कंप्लीटेड इज डिफरेंट थिंग। हाँ कंप्लीटेड इज डिफरेंट थिंग, लैप्स इज डिफरेंट। हाँ lapse का ही बात। लैप्स है तो उसके पास पूरा राइट है, लैप्स हो गया। नहीं तो वही मैं ये पढ़ा नहीं था, मैं बाद में जब बैंकर ने बन किया तब जाके पूरा ऑर्डर 56 पढ़ा है, बरोबर बोल रहा है वो। पोर्टल में आपको लैप्स दिख रहा है तो बैंक के पास राइट्स है, फॉर द बेनिफिट ऑफ अलॉटीज वो कर सकता है, उसके अलावा वो नहीं कर सकता वहां पे बात। एक तो अभी वो बैंक हम लोग भी कर रहे थे ना, अरुण सर, वो कैसे कर रहा था, 70 में से 30 में कर रहे हैं, 30 में से पेमेंट कर रहे हैं, बोलते 70 में से डायरेक्ट हम पेमेंट नहीं। हाँ बोलो। हम लोग भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ, अलग अलग बैंक का हाँ, बैंकर सबके अलग अलग है।
70 में से डायरेक्ट वेंडर को पेमेंट करने को अलाउड करना चाहिए। नहीं नहीं वो अपने को तकलीफ हो। हाँ सर बराबर तो अच्छा है वहाँ से 70 से इधर। नहीं हाँ। लेकिन हाँ मेरा तो सब बैंक तो वही है ना 70 में से कंस्ट्रक्शन 70 से 30 में जाता है नहीं फिर 70 but आप- में डायरेक्ट पेमेंट आप डायरेक्ट पेमेंट, काफी सारे बैंक डायरेक्ट Allowed पेमेंट भी नहीं। करते हैं। सब नहीं, बैंक क्या अलाउड नहीं है सब अलाउड नहीं है चेक बुक मैं explain भाई करना मैं पढ़ा अलाउड ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। क्या लिखा है? अरे एक मिनट रुकना है, पढ़ा था इतना चिल्ला क्यों रहा है भाई? काफी सारे बैंक आरटीजीएस कर लेते हैं 70% अकाउंट से। आरटीजीएस का आप डिटेल दो, वो कर लेते हैं। काफी सारे डेवलपर ऐसा बोलते हैं कि हमको 30% में डालते हैं, वहां से हम चेक लिख के देंगे सबको। तो चेक तो आपको 30% का ही मिलता है। लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अपना जो है वो 70% से डायरेक्ट जाना चाहिए। यही रेरा का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, राइट राइट। तो बराबर अपोजिट कर रहे हैं। नहीं इसमें लॉजिक ये है कि 70% से अमाउंट कब विड्रॉ हो जाएगा, जब आर्किटेक्ट इंजीनियर और सीए का सर्टिफिकेट जाएगा तब भी विड्रॉ होगा। मतलब ऑलरेडी खर्चा हो चुका है प्रोजेक्ट के लिए, पहले आप खर्चा करोगे तो वो कैसा होगा कि पर्सन नहीं है, मेरा पर्सन का मैं दिखा दूंगा, उसके सर्टिफिकेट की जरूरत है। फिर वो सर्टिफिकेट की मीनिंग ही नहीं रहता उसका। नहीं 70 में से 30 में डालने का लॉजिक क्या है? बैंक वही जो खर्चा सीए सर्टिफाई करेगा, ये खर्चा प्रोजेक्ट के लिए हुआ है, तभी वो 70 में से 30 में जाएगा। हो चुका है वही विड्रॉल का चल रहा है ना अपना। हाँ वो फ्यूचर एक्सपेंस थोड़ी कोई कौन कर सर्टिफाई करेगा कि मेरे को इसको चेक देना है। नहीं देखो, आप 30 में डायरेक्ट डालो या बाहर पार्टी को डायरेक्ट दो, बोथ आर अलाउड बिकॉज यू हैव द एलिजिबिलिटी सर ऑर्डर इन योर फॉर्म 3। ऑर्डर 56 कहीं पे भी नहीं बोलता है आपको। अगर इनको मिला तो अच्छा बात है, मेरे से पढ़ने में मिस्टेक हुआ रहेगा, बाकी ऑर्डर नहीं, बट तो आपको कभी भी नहीं बोला है कि 70 से 30 डालो 30 से पे करो। तो फिर 30 का फिर ये क्यों? 3 अकाउंट ही क्यों बोल रहे? तो 2 ही अकाउंट में काम हो जाएगा ना। 70 तो तेरा सर्टिफिकेट देगा तो निकलेगा पैसा। हाँ 30 से यूज करो ना आप। तो फिर नॉर्मली दो अकाउंट में भी हो ही जाता ना मेरा वापस कलेक्शन। क्यों 100% थोड़ी खर्चा करने का, 30% तो मेरे हिसाब से मैं खर्चा कर सकता हूँ, मेरे पेट्रोल के लिए मैं खर्चा कर सकता हूँ। नहीं 70% जो है अभी मेरे क्लाइंट लोग क्या बोलते हैं, शशांक मेरे को 30 में पैसा आएगा ना तो मेरे को अच्छा लगता है चेक फाड़ने के लिए, तो वो बोलता है मैं 30 में ही लेगा। मतलब कोई इशू नहीं। कोई ऐसे जो पूरे ऑनलाइन वाले हैं आरटीजीएस का फॉर्म देते तो डायरेक्ट 70 से ही पैसा करते हैं। हाँ तो नथिंग हार्म इन दैट, कोई इशू नहीं है। वी कैन डू बोथ प्रैक्टिस, देयर इज नो हार्म इन दैट। बैंकर अगर कोई स्पेसिफिक बोल रहा है कि नहीं मेरे को 70 से 30 में ही डालो, अगर वो कंडीशन डाल रहा है तो उसको समझना पड़ेगा बैंकर से, बिकॉज ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बैंकर अपने कंफर्ट जोन के लिए या उसके प्रोसेस में डाला रहेगा तो अलग बात है। हम तो अभी टू बी ऑन द सेफर साइड, एक्चुअली मेरे को तो ये लॉजिक भी नहीं बैठ रहा था, तो लास्ट टाइम मैंने तो एक अकाउंट में देखा ना, तो मैंने तो नोट भी लिख दिया कि भाई बैंक ऐसा कर रही है, नॉर्मल प्रैक्टिस बैंक ऐसा कर रहा है। लेकिन सर वो अपने लिए बहुत इजी हो जाएगा। 100 to 70, 70 to 30 जाएगा ना, सर लेकिन अपना हमारा बहुत इजी हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा ना सर, जितना बैंक घूमेगा कॉम्प्लिकेशन, अकाउंटिंग में भी कॉम्प्लिकेशन हमारा बढ़ जाएगा। क्योंकि अपने को रिपोर्टिंग 70 का ही करना है। एक बार आया और गया। एक बार 30 में आ गया पैसा समझ लो, तो पूरा का पूरा 100% अपन यूज कर सकते हैं ना। नॉन में आएगा, नॉन कंस्ट्रक्शन यूज के लिए सर, कर सकते हैं पैसा। है बट सर ऐसा नहीं है, मिसकंसेप्शन है। अगर 30 में गया ना, इट इज लाइक प्रॉपर्टी ऑडिट, आपको चेक तो करना है भाई वो 70 से 30 में गया, वो 30 से भी प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं, वो भी तो आपको चेक करना है सर। ऐसा नहीं है कि 70 से जो 30 जा रहा है ना, वो अपने चेक करने के बाद ही जा रहे हैं ना। मैंने सर्टिफिकेट दिया उसके बाद ही जा रहा है, खर्चा करने के बाद जा रहा है। जा रहा है। मैंने आज 5 करोड़ खर्चा कर दिया, नहीं कर रहा है खर्चा, अगले सर्टिफिकेट पे इफेक्ट आएगा उसका। मैंने खर्चा कर दिया, वो पैसा निकाल रहा हूँ मैं। नॉर्मल भी जब खर्चा है ना, तो वो तो खर्चा तो आप सर्टिफाई कर ही रहो ना सर, तो वो 70 में हो के 30 में हो, क्या फर्क पड़ने वाला? आपका जो खर्चा है, आप खर्चा देख रहे तो हो, वो एलिजिबल आएगा, अगले क्वार्टर में भी आएगा। वो तो इधर से अपने लिए ही इजी की चीज के लिए पड़ेगा। 70% सिंपल अकाउंट बनेगा। हाँ। इतना 30 में चला गया, ज्यादा हेडेक नहीं देगा। अगर वो हर एक उसमें आ जाएगा ना, तो अपने को तकलीफ देगा। सिंपल इट रहेगा, इतना कॉम्प्लिकेट करेगा तो अपने को तकलीफ हो जाएगा। 70% वाला पैक करने के लिए, क्योंकि अपने को रिपोर्टिंग 70% वाला ही है। तो सेम वे आपको 30 भी तो टैग करना है। 30 करना है, बस अगले सर्टिफिकेट के लिए।
हाँ मतलब अब- लेकिन खर्चा वो बराबर हुआ कि नहीं तो वो आपको देखना तो पड़ेगा ना। अगर अगले सर्टिफिकेट 70 से जो पर्पस के लिए 30 में हुआ है वो पर्पस के लिए ही 30 से यूज हुआ कि नहीं नहीं वो नहीं देखना है ना सर, क्यों नहीं देखेगा तू फिर? मैंने कर चुका हुआ पैसा मेरा आ गया है, कर चुका हुआ वो पर्सनल भी कर सकते हैं उसमें, क्या कर सकते तो हैं? इनकट वाला तो वैसे भी 70 से कर सकता हाँ मतलब वापस उसको मैं वी है। मैं ऑल्सो समझ चेक। गया, अंडरस्टूड। क्योंकि अगला पैसा जब वो कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं यूज करेगा, अगले Ultimately क्वार्टर में उसका मुझे- एलिजिबिलिटी कम बैठेगा। अल्टीमेटली मुझे खर्चा चेक करना है, कोई भी मेथड हो मुझे खर्चा खर्चा check चेक करना करने के खर्चा प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करना है, बाकी तो ये तो भी क्या बोला 70 है। कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना, 30 पर्सनल के जा सकते हैं। हाँ। ये 70 में 30 मतलब समझा नहीं क्या? 70 में से 30 में मैं पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ और वहां से पूरा खर्चा कर रहा हूँ। 70 तो आप लोगों को इनकर करना है कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना है, वो आप आपका सर्टिफिकेट दोगे फॉर्म 3 तो ही वो पैसा निकाल सकते हो। तो आपने बैंकर को पैसा दे सर्टिफिकेट दे दिया तो आपकी एलिजिबिलिटी थी, आपका 70% अकाउंट में 70 लाख रुपया पड़ा था, आप वो 70 लाख रुपया डायरेक्ट वेंडर को दो या 70 लाख रुपया आप 30% में लो, वहां पे कोई बैंकर 70% में से डायरेक्ट आपको आरटीजीएस एनईएफटी करने देती है। कोई बैंक वाले आपको बोलते हैं 70 का पैसा पूरा आप 30 में लेके जाओ, 70 लाख रुपया आप 30% अकाउंट में लेके जाओ और वहां से आप चेक फाड़ो, वहां से आप आरटीजीएस करो। तो वही है, बट दोनों दोनों प्रोसेस में रिपोर्टिंग फ्रॉम अ फॉर्म 3 पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर्म 5 पॉइंट ऑफ व्यू विल नॉट चेंज। सो जो हमारी लाइबिलिटी या हमारे हमें जो चेक करना है वो दोनों प्रोसेस में सेम ही रहने वाला है। अपर इसके सिवाय ये तो हो गया फॉर्म 3 और ये जो हमने डिस्कस किया। अब जैसे हम नए में भी एप्लीकेशन करें तो अभी उन लोग ने जैसे एक रिसेंट क्वेरी निकाला कि भाई हम डिक्लेरेशन देते हैं सिंगल, एक प्लॉट पे एक ही रजिस्ट्रेशन है, ऑर्डर 50 है ना, क्या ऑर्डर 50 का भी गिव वन सिंगल डिक्लेरेशन। तो हम पहले डिक्लेरेशन एज इट इज छाप लेते थे, तो वो बोलता है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उधर वो भी पूरा भरो, प्लॉट नंबर, सीटीएस नंबर, पहले क्या होता था सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर सब लिखा हुआ आता था लाइन में। तो अभी आपको जो एप्लीकेबल है आप उतना ही चीजें लिखो, बाकी सब डिलीट करो। अभी बैंकर से सेकेंडली बैंकर से हम फॉर्मेट बी आता है व्हेन वी ओपन अ रेरा अकाउंट 170/30, तो वहां पे सेकेंड या थर्ड लाइन इज देयर कि दिस इज गिवन अंडर ऑर्डर 56 डेटेड सो एंड सो, वो हमेशा डैश ही थे, बैंकर से फिल इन द ब्लैंक्स आती थी और वैसे ही हम अपलोड करते थे, तो आज तक रेरा सर्टिफिकेट आ रहा था। अब उस पर भी क्वेरी निकाल रहे हैं इन एक्सटेंशन एप्लीकेशन, इन एक्सटेंशन एंड आई डिड न्यू एप्लीकेशन में भी और इसमें भी। अभी मेरा किसमें निकाला वो क्वेरी, चेंज ऑफ एफएसआई था, चेंज ऑफ कॉस्ट और बैंक चेंज, तीनों एप्लीकेशन मैंने साथ में डाला है अभी। तो उस 3 में मेरे को ये क्वेरी निकाला कि ये डैश नहीं चलेगा, कुछ है नहीं क्वेरी का मतलब नहीं। अभी सीटीएस नंबर मेरा था और बाकी सब डैश डैश डाल दिया था, बोलता खाली सीटीएस नंबर ही रखो बाकी सब आप उड़ा दो। वो मतलब हमने डैश डैश डाल दिया था, जैसे हमको पता था हमने डैश डैश डाल दिया था, उसके लिए क्वेरी दे दो। सो कुछ निकालना जरूरी है। हाँ, कुछ निकालना। अब ये लीगल वाली ने क्या क्वेरी निकाला यही एप्लीकेशन में, वो मेरे को क्वेरी समझा भी नहीं इतना और मैंने दिमाग भी नहीं लगाया। मेरा था अपना एप्लीकेशन कैसे आता है, प्रमोटर लैंड ओनर प्रमोटर दो आता है, तो हमारे एप्लीकेशन में दोनों टिक थे और हमें रेरा सर्टिफिकेट आ भी गया था। अब जब उसने किया तो वो बोल रही है कि नहीं आप प्रमोटर टिक निकाल दो, सिर्फ प्रमोटर लैंड ओनर टिक रखो। तो वो अभी मेरे को रीसबमिट करना था और मेरे पास टाइम नहीं था, मतलब फटाफट टिक निकल रहा है ना, निकाल के रीसबमिट मार दे। सो लीगल ने ये क्वेरी निकाली। सो हाउ दे आर प्रोसेसिंग, मैं वो बोलना चाहता हूँ कि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको कुछ छोटी चीज भी निकाल रहे हैं, बड़ी चीज तो चलो अपने आंख में आ जाती है या कुछ इश्यू है तो हम समझ जाते हैं, बट छोटी चीजें ये डैश नहीं रहना चाहिए, ये डेट इधर ऊपर ऐसा आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, आपका अगर डिन नंबर नहीं है तो एनए लिखो वहां पे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में। सो ऑल दिस आर स्मॉल क्वेरीज, ये क्वेरी आने के बाद हमारा 7 दिन खा जाता है, 4 to 7 days हमारे चले जाते हैं। वी आर इन ऑकवर्ड सिचुएशन टू रिप्लाई टू द क्लाइंट ऑल्सो, और क्लाइंट हम बोल रहे भले कि आज हम 3 महीना पहले एप्लीकेशन करेंगे, कुछ होता नहीं है, वो हमें भी मालूम है क्लाइंट को भी मालूम है, बट अब जब वो बैंक सब उसको टाइट करेगी तब वो क्लाइंट की अगर टीम रहेगी तो वो प्री फॉलो करेगी अपने से, और हमें भी क्लाइंट को एजुकेट करना जरूरी है, क्योंकि आगे की प्रैक्टिस हम उनको एजुकेट नहीं करेंगे, उनसे डेटा नहीं लेंगे तो इट वाज डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। डेस्क 1 में जैसे अभी यश बोल रहा था, तो देर आर डिफरेंट ऑफिसर्स, तो सबकी स्पीड अलग है। कोई ऑफिसर है जो सिर्फ डेट के हिसाब से चलता है, आप कितना भी कोई भी जाओ वो बोलेगा नहीं मैं तारीख के हिसाब से ही चलूंगा, आपकी एप्लीकेशन 10 तारीख की तो मैं 10 तारीख की जब वो आएगी 10 तारीख की तब भी देखूंगा।
आपकी रीसबमिट एप्लीकेशन है तो मेरी रीसबमिट जब लाइन में आएगी तब देखूंगा। लीव पे रहते हैं काफी, लीगल वाली टीम उनकी अभी लास्ट वीक कुछ छुट्टियां पे थी तो काफी काम अटका हुआ था। सो ऑल दिस इश्यूज आर देयर। अभी जैसे यश बोल रहा था, अभी जो मीटिंग चल रही थी, तो यश अभी एंड रिजल्ट क्या आया? एंड रिजल्ट तो सर अभी वो प्रोसेस करेंगे, मेरे को लगता है मंडे ट्यूसडे प्रोसेस करेंगे, वो ऐसा है। फॉलोअप किससे करोगे आप? मैं सर एसआरओ से करूंगा फॉलोअप फिलहाल में तो, लेकिन क्योंकि ओके। वो एसआरओ ने ऑफिसर के पास भी लेके गया, वो ऑफिसर बोलता है कि हाँ आपका आया है, लेकिन आपके पहले इतने लोग ऑलरेडी है, उनका होने के बाद फिर मैं आपका लूंगा बोले। आपका तो 19 अक्टूबर का एप्लीकेशन है, दिवाली के हाँ टाइम का। उसके पहले के भी कुछ है बचे हुए उनके, और मैं, हाँ मतलब, और एक उसके कौन है बाद सर? हमारा और एक कौन है, मतलब कौन सा नंबर पे? नंबर पे One, 2 पे है, 2 पे, 2 टू 2 2। JR2 है सर। सर सबके हाँ लिए वो JR2 वाले। JR2 वाले। JR2 सबके लिए रोल मॉडल है सर, कि कैसे चीजें ना होनी चाहिए, हाँ बराबर। ऐसा है। और SRO भी आपका वो है ना, लड़की आर आर से नाम है। वेदांती वेदांती अच्छा नहीं है, MCH है, MCH है ना आपका नरेड को? MCH है नहीं, नरेड को है। ओके ओके। सो अभी इसमें नेक्स्ट और वीक एक में नहीं। चीज था, हम्म। इसमें इसमें और एक चीज था, जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन है ना, जहाँ पे बहुत सारे टावर्स है और ओसी आ चुका है, तो वो लोग वो भी बोल रहे हैं कि आप, मतलब मैंने जो समझा एक सीनियर ऑफिसर से वहां पे, कि उनकी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं, आप ओसी लगा दो। तो जो टावर का ओसी नहीं आया, सिर्फ उसमें से ही 1/3 या 2/3 की कंसेंट लेने की जरूरत है। सो अगर एलोबरेटिंग टू दिस योर रिस्पॉन्स, मेरी 12 माले की बिल्डिंग है, अब 10 माले की मैंने पार्ट ओसी ले ली है, हाँ और दो माला मेरा बना नहीं है बिकॉज कोई मैं चेंज ऑफ स्कीम में जा रहा हूँ, या रोड विथ की वजह से मेरे को वो ऊपर का एक माले का अप्रूवल नहीं मिला। तो उस केस में भी राइट। मेरे को जो नीचे के 10 माले है जिसकी ओसी आ गई है, किसी को मैंने सॉफ्ट पोजीशन दे दिया है, किसी को पोजीशन दे दिया, तो उनकी साइन की जरूरत नहीं है। हाँ अगर सपोज किसी को सॉफ्ट पोजीशन दे दिया, तो आप लाइट बिल लगा दो उसके, कि देखो इसका लाइट बिल है, ये जनरेट हो रहा है, इसका सॉफ्ट पोजीशन दे चुका हूं मैं, तो उनकी सिग्नेचर्स लेने की जरूरत नहीं है। लाइट बिल तो थोड़ा टाइम लेता है, पोजीशन लेटर पे साइन स्टैंप रहता है, वो नहीं चल रहा है। हाँ हाँ वो चल जा रहा है, वो चल जा रहा है, वो चल जा रहा है, किस चीज को लेकर? पार्ट ओसी आ गई वो है चल जा रहा है, और पोजीशन या लेटर चल मल्टीपल रहा है। विंग्स है। ओके। या मल्टीपल विंग्स है, आपकी 5 विंग की बिल्डिंग थी, 4 माले की, 4 बिल्डिंग की ओसी आ गई, तो सिर्फ 5वां जो बचा हुआ है उसका ही साइन लेके देना है, और बाकी 4 का पूरा एक्सप्लेनेशन देना है उनको कि ओसी आ गई है। तो द प्रेजेंटेशन वुड बी सेम, जो एक नीचे टेबल ऐड करके। हाँ वहां पे अलॉटीज के वहां पे आपको देना पड़ेगा कि कितने जनों की ओसी आ गई है हमारी, उनके हमने कंसेंट ने ली, वो उतना 0 कर देना पड़ेगा। मतलब ये एक हमारे लिए कभी कभी क्या होता है, एनओसी की वजह से भी काम अटक जाता है। राइट। तो ऐसा ये आपने चीज किया पे क्या? भी हम लोग हाँ मैंने किया है ऐसे। मैंने अभी हमारे यहाँ पे मैंने 3 प्रोजेक्ट किए, जहाँ पे हमारे टावर्स में ओसी आ गए थे, पार्ट पार्ट टावर्स में, मतलब 10 टावर का था तो 8 टावर में ओसी आ गए थे, तो फिर हमने सिर्फ 2 टावर्स के हद तक ही कंसेंट लेके, उसमें भी हमने कुछ कुछ पोजेशन दे चुके थे ऑलरेडी। अभी जैसे Tier 2 Tier 3 सिटीज में कैसा रहता है कि वो OCCC का नहीं लिखते हैं, पूरा काम कंप्लीट हो गया वो ताबा दे देते, लाइट वाला भी आ जाता है लगा देता है, तो हम लाइट बिल्स वो सब, पोजीशन लेटर अगर है तो पोजीशन लेटर भी जोड़ के एक्सटेंशन मिल गया सर हमको। हाँ कर सकते हैं वैसे। यस यस यस। हाँ मतलब वी डू, मतलब यहाँ पे भी ऐसे करते हैं, अगर पार्ट ओसी आया रहेगा सो पोजीशन लेटर पीछे अटैच करके वो उसका काउंट कर लेते हैं। हाँ तो उसका Right. फॉर्मेट वगैरह कुछ Similar. पोजीशन लेटर। और नीचे वो टेबुलर। नहीं, तो जो यूनिट सोल्ड है हमारा, हाँ तो फिर उसमें कैसे करेंगे? वो यूनिट सोल्ड और पेज नंबर पीछे रेफर करेंगे कि ये पेज नंबर पे सिग्नेचर जहाँ पे लिखा है ना, उसके बाजू में पेज नंबर लिखिए, पोजीशन गिवन करके फिर पेज नंबर लिखिए। रिमार्क्स तो उसका कॉलम बना साइन के। का जरूरत नहीं है। हाँ हाँ तो जब और जो टोटल लिखते हैं उसमें, उसमें वो अप्रूवल में काउंट, मतलब मतलब sign, done। हाँ हाँ
यश, हाँ सर। जैसे हमने वो लास्ट एक एग्जांपल डिस्कस किया कि 10 फ्लैट थे, उसमें 3 फ्लैट एक ही जन के थे, राइट बरोबर? तो जो ऑनलाइन राइट पोर्टल पे प्रेजेंटेशन है, वहां पे तो क्या दिखेगी कि मेरी नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज एज्यूमिंग के 10 थी और 10 बेच दी मैंने, फिर बाजू में बराबर आता है सोल्ड, बराबर बाजू में राइट आता है सोल्ड ऑनलाइन में। तो राइट। सोल्ड में आप क्या लिखते हो, 8 लिखते हो कि 10 लिखते हो कि क्या लिखते हो? नहीं, उधर कॉलम्स बनाते हैं, रोज इंसर्ट करते हैं। तो पहला रो रहेगा जो मेरा सोल्ड अनसोल्ड और फॉर्म 3 से मैच होगा। 10 यूनिट्स है, 5 बिक गए, 5 अनसोल्ड है, ऐसा। और उसके नहीं, नीचे तो फिर हम एक ऑनलाइन और एक पोर्टल में ऑप्शन है क्या ऑनलाइन व्हाइल मेकिंग द नहीं नहीं एप्लीकेशन? नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन नहीं। जो हम नहीं, फॉर्म ऑनलाइन कंसेंट का ऑनलाइन ऑनलाइन में ऑनलाइन कैसे एज इट भरोगे इज डेटा? आएगा। ऑनलाइन एज इट इज आएगा। ऑनलाइन ओके, एज इट इज आएगा। नहीं, मेरा यश भाई, उनका मेरा बोलने का जहाँ पे है, जाएगा, उनका बोलना एक है कि सेकंड मैं 12। बताता हूँ आपको। एक सेकंड, अगर आप मेरे को एक 2 मिनट देंगे ना, मैं आपको एक वो एक्सटेंशन एप्लीकेशन शेयर करके बताता हूँ हमने कैसे किया है। बस ओके ओके एक ग्रुप दो में मिनट डाल दीजिए दीजिए बस। आप। यस इधर ही यस। बता देता हूँ, शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके। ओके 2 मिनट दीजिए बस। ओके। श्रेया, आर यू देयर? नया नंबर है सर, इज आल्सो कमिंग आपका। श्रेया, यू आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? Yes, sir. So a small introduction, your name and from where you practice. Sir, my name is Shreya and I practice with Yes Nagar. श्रेया, काइंडली स्विच। सर मेरे ऑफिस से ही अटेंड कर रही है वो, अच्छा, ऐसा है। हाँ हाँ। ओके ओके। सर का भी एक इंट्रोडक्शन, आज फर्स्ट आप अटेंड कर रहे हो। मेरा नाम रविराज जानी है, मैं प्रैक्टिस बदलापुर में करता हूँ, रूटीन प्रैक्टिस। और अभी फुल फ्लेज रहेगा, प्रैक्टिस चालू हो रही है वो उसको और स्पेशलाइज करेंगे। हाँ, अभी सर प्रभु सर के साथ 2017 में किया था कोर्स फर्स्ट, सबसे टाइम मेरा। अच्छा, और ये टाइम पे फर्स्ट टाइम ज्वाइन करके फर्स्ट ये मीटिंग है। स्टडी ग्रुप फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं, वो करते समय दिक्कत देते हैं एक्चुअली। वो तो इंस्टीट्यूट है ना, गणेश इंस्टीट्यूट। का आधा लगता है एक पॉइंट ये करता हूँ कि नए पोर्टल पे रिहाब का जो रिसीवेबल है वो हमको टेबल डी में दिखाना है, रिसीवेबल फॉर्म मर्ज करना है, उसको मर्ज नहीं करना है। नहीं टोटल का तो रिसीवेबल हम लोग दिखाते हैं, हाँ तो रिहाब वाला उसमें ऐड करना है। हाँ हाँ। रिसीवेबल आपका जो ये भी है फॉर्म है जो ऑनलाइन जनरेट करते हैं, उस पे भी वो है। अपने को एक्स्ट्रा उधर दिया है, टेबल में एक अलग जगह पे दिया है कि जो एक्स्ट्रा एरिया दे रहे हैं उसका कितना हम पैसा है। हाँ अपन में डालते हैं अंदर। हाँ डी मध्ये पैसे रिसीवेबल ना, हाँ जो मेरे को पैसा आने वाला है, हाँ उसमें ऐड करना है। रिहाब का भी करना है। यस, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को एक्स्ट्रा एरिया सेल करते हैं तो ही दिखाना तो ही हाँ, वही अदरवाइज पैसा अदरवाइज आएगा फॉर्म 3 में टेबल में जाए। हाँ हाँ, वो डी में बोल रहे हैं, नीचे का जो टेबल है ई के ऊपर का, जहाँ पे हम लोग 70-100 का उसमें दिया है। प्रोजेक्ट कितना खर्चा करने के लिए पैसा बाकी और आने कितना वाला है। डायरेक्ट उसमें ऐड कर। ऑटो पॉपुलेटेड नहीं है, बहुत सारी जगह पे ऑटो पर। हाँ वो नहीं है। इतना करेंगे वो अच्छा है, वो बैलेंस रिसीवेबल पे हमसे डालना पड़ रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। जूम कर, जूम। ESW क्या, बहुत सारा सस्टेनेबल। सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? थोड़ा और, हाँ बस तुम। अभी सर ये देखिए, ये प्रोजेक्ट में कैसा किया हमने। टोटल 304 यूनिट्स थे, सोल्ड 170। इसमें हमने पोजीशन दे चुके थे ऑलरेडी, पार्ट कंप्लीशन, तो वहां पे 0% लिखा। फिर नीचे 304 सोल्ड 42, उसमें से कितने लोगों के कंसेंट लिए वो फिर हमने यहाँ पे डाला, ऐसा है। दिख रहा है सर आपको?
भेजेगा ना उसको। इनवाइटेड है। मतलब ये 304 यूनिट 170 पोजीशन गिवन पार्ट कंप्लीशन। ओके, तो 0 डाल दिया हमने। सो दिस एप्लीकेशन इज हाँ। एक्सेप्टेड। ये Yes, 170 yes, का yes. आपको प्रूफ देना है बराबर ना? कितने दिन हाँ पहले हाँ किया हाँ था प्रूफ यश? दे। ये दिवाली के पहले, दिवाली के बाद हो गया था ये एक्सेप्ट, मतलब 25 तारीख को आ गया था इसका। ओके आउट ऑफ दिस 42 वी नीड टू टेक बाकी का। राइट अभी जो राइट। हम ईमेल पे लेते हैं एक्सटेंशन हाँ अप्रूवल हाँ 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 कंसेंट, उसमें क्या राइट। करते हो? मैं तो वो PDF यहाँ पे जो सिग्नेचर है ना, करके- वहां पे ईमेल अटैच करके बता देते हैं ना, सिग्नेचर कॉलम में ईमेल अटैच करके लिख देते हैं हम लोग। हाँ हाँ सीधा ईमेल अटैच करते हो ना? यस। हाँ कुछ हाँ क्वेरी आई यस उसमें? यस। नहीं अभी तक नहीं हम नहीं लोग अब नहीं नहीं। हम लोग लिखते हैं काइंडली रेफर पेज नंबर सो एंड सो। सो मेरा भी सिमिलर एप्लीकेशन था, उन्होंने बोला कि सब पेज पे प्रमोटर का साइन एंड हाँ। स्टैम्प करो और फिर अपलोड करो। हाँ हाँ वो कर वो मैंने- तो है, वो तो मैंने है, ये email देखिए attachment हर एक direct कर उसमें। दिया था। नहीं नहीं वो सब पेज Compulsory है? कर रहा है। अभी वो कंपलसरी। नहीं ये तो काफी टाइम हो गया, बट मेरे को नहीं पता था तभी। ये टेबल भी हमारे हाँ पेज पे हाँ। स्टैम्प देखो ना, किया ना स्टैम्प किया ना। हाँ हर एक पेज पे करना है। और ये लोग तो बोल हर रहे हैं एक पेज पे। पेज वाला भी है ना, वो भी हर एक पेज में लिखा। हाँ 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 ये वाला भी हर एक पेज हाँ, वो पे, पूरा एज इट इज। हाँ ऊपर का जो पहले टेबल का रहेगा ना वो हर एक पेज पे जाएगा। सोल्ड वो भी है ना हाँ, हर पेज पे। हर एक पेज पे हर एक पेज हर एक पेज पे, हर एक पेज वो 28A आया था उसके लिए सर्कुलर हाँ आया हाँ था राइट 28A, राइट राइट। उसके अंदर वो लिखा हुआ है। बराबर है। अभी AFS में क्लाउड है तेरा रजिस्ट्रेशन। हम लोग पीछे का वो जो कॉमन एम्यूनिटीज के बारे में लिखते हैं वो उसके बारे में क्या करेंगे? उसके लिए कितनी जरूरी नहीं है तो डिटेल्स देने का। अगर आपने वो सिलेक्ट कर दिया तो एज पर रेरा हाँ बरोबर ना? हाँ और वो एडिट हो रहा है क्या? अभी समझो एज पर रेरा मैंने डाल दिया एक बार तो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, हाँ फिर क्लाइंट ने कुछ प्लस माइनस किया तो देयर इज नो प्रोविजन इन दैट ना, इन द न्यू पोर्टल। प्रोविजन नहीं है बट एज पर AFS जो है जब भी कुछ भी रेफर होगा तो इट विल बी स्टैंडर्ड रेरा फॉर्मेट से ही वो रेफर होगा। एग्रीमेंट भले कुछ भी बना लो, मतलब कोई केस हुआ तो उस पे ही चलेगा। क्योंकि अभी मोस्ट ऑफली आप लोग सब मतलब क्या कर रहे हो, ओके करके वो नंबर मॉडल को ही एक्सेप्ट कर रहे हो। एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब यू आर एग्रीइंग दैट यू आर रेडी टू गिव दीस जो भी है। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो अभी रेरा रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, नया रेरा रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो देयर इज एन ऑप्शन फॉर अलॉटमेंट लेटर फॉर्मेट एंड AFS। तो वो दोनों हम अगर एग्री करते हैं, जैसे कि क्या होता है कि इफ सी देयर आर 3 सेगमेंट्स इन विच बिल्डर्स आर वर्किंग। एक तो है पहला सेगमेंट है जो बड़े बिल्डर्स है, बड़े प्लेयर्स है, तो उन लोग तो कुछ अदरवाइज राउंड नहीं जाने वाले। बीच के है जो नए पुराने हैं और स्टैंडर्डाइज है, तो दे आर आल्सो वर्किंग नाउ, दे हैव कोप अप विद रेरा। अभी जो थर्ड जो सेगमेंट है बिल्डर्स के, उनको ऐसा रहता है कि भाई रेरा में नंबर ले लो, फिर हमको जो करना है हम करते थे। तो वहां पे हम रेरा में अभी AFS अपलोड कर ही नहीं रहे, अलॉटमेंट लेटर भी अपलोड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे हम खाली यस लिख रहे हैं। तो जैसे उसमें एग्रीमेंट में भी उन्होंने 63 या 62 में ये लेकर आए थे कॉमन एम्यूनिटीज के बारे में, जैसे कि प्लेग्राउंड क्या देने वाले हैं, वो सब डिटेल्स उन लोग पहले मांगते थे। अभी वो चीज यहाँ पे मिसिंग हो जाएगा वापस, तो ऐसे तो उसके लिए बट क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? रजिस्ट्रेशन में तो रिक्वायर्ड है ही नहीं, बट अभी कैसा होगा नहीं, that is a good नए practice, but नए रजिस्ट्रेशन में रिक्वायर्ड है ही नहीं। नहीं, बट वो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बरोबर है। बराबर है, लेकिन यहाँ पे है ना बिल्डर लोग क्या बोल रहे हैं कि अभी कैसा आप AFS डालते हो बराबर है, उसमें और इसमें कुछ वेरिएशन रहते हैं ना, डेविएशन रिपोर्ट वो सब। अब बिल्डर लोग को कैसा मालूम है कि जैसा इन लोगों को फटेक से ये चाहिए, तो अगर आप Registration. ऐसा कर दिया तो ये लोगों को फटेक से आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा है ना क्वेरी AFS में ही आता है, बराबर। तो वो बचने के लिए ये लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्दी कर दो, जैसा है वैसा कर दो, बट ये लोग है ना दूसरा बना के लेते हैं और वो हिसाब से करते हैं। ये भी मैं बता, वो प्रॉब्लम ही है, वो प्रॉब्लम ही है बैंकर क्वेरी निकाल इसके लिए। अगर
एक्स्ट्रॉर्डिनरी Buyer, देखने वाला buyer. करने वाला वो भी सबसे निकाल ज्यादा देंगे। बायर अगर आज हमारे पास आए ओपिनियन लेने के लिए तो हम भी वो मैच करेंगे। हाँ, दूसरा प्रॉब्लमेटिक क्या है मालूम है क्या, अभी अभी ये बिल्डर को पता नहीं चलता, लेकिन कोई अलॉटी जब करेगा ना, कोर्ट में जाएगा या कोई होगा ना, तभी वो प्रॉब्लम है। बाकी अभी कैसा है, स्मूथली चल रहा है, तो कोई किधर अटक नहीं रहे, और तो फिर ठीक है। एज अ सीए करके अपना क्या उसमें कुछ रोल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट इट इज अवर ड्यूटी टू ओनली एक्सप्लेन अवर क्लाइंट्स कि वी हैव टू यूज दिस प्रोसीजर। सबसे इम्पोर्टेंट form 3 और form 5 नहीं, not required. because we have not been told to read the whole agreement and give any opinions. एएफएस में हमारा कुछ हो रहा नहीं है, एएफएस अलॉटमेंट लेटर हमारा कोई भी सबसे इम्पोर्टेंट वही हम सेल्फ कैसे ये एग्रीमेंट हम लोग रीड खाली ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही करते हैं, बाद में जो रजिस्टर्ड होते हैं। हम लोग अभी एडवोकेट से ज्यादा हम लोग एडवोकेट होंगे, क्या पता चले एडिटिंग नहीं एडवोकेट, तो इतने सारे क्वेरी निकलते ना, अभी चेंज कर देते। हाँ, बिकॉज बरोबर क्लॉज, पार्किंग क्लॉज, मतलब अलग-अलग क्लॉज है ना, वो डालना पड़ता है। जैसे रेरा कलेक्शन अकाउंट का है, हाँ, तो वो सब जो पॉइंट है तो वो सब हम लोग को पता है और हम वो अपडेट कर देते हैं, बट इनको नहीं पता है तो नहीं ये पता है। हाँ बस सिर्फ बढ़ा देना और स्वीट भी मत देना, नहीं स्वीट दे दो, सॉरी सर ये इसके लिए क्यों वापस भेजे? हाँ नहीं है ना डोसा है दे दें तो थ्री जो है उसके ऊपर साइन सबका लगेगा ऐसा बोल रहे हैं, वो ये का मतलब खाली प्रमोट होता है ना हर पेज। हमारे में हमारा लगता है और प्रमोटर का लगता है। इसका जो है वैसा राउंड शेल तो मैं हम लोग सब पेज पे ही मारते फॉर्म 1 पे इंजीनियर नहीं मारो, लास्ट पेज पे लास्ट पेज पे मारते थे, लेकिन अभी अभी हम लोग ने करवा लिया, सब पेज पे मार के दे। और दूसरा ये फॉर्म 1 फॉर्म 2 कंपोजिट सिस्टम से निकालना है और उनका साइन देना है। हाँ क्योंकि वो लेटर और इसके ऊपर और रख देना भाई। ये दे सर को खिलाते हैं। हाँ ले इसको। पाव वाला कर पाव आपका पाव तो जैन होता है, पाव में नहीं खाने वाला, पाव जैन ये ले तुम में इसका तो मिठाई बहुत पसंद है। दे दे और एक दो नहीं खाना रहेगा इसलिए खाने को हाँ ज्यादा आ गया क्योंकि बहुत सारे चालू है ना। सर नासिक से गणेश बात कर रहा हूँ। हाँ यस गणेश जी, सर अभी आपने बात किया टेबल डी के बारे में, इसमें वो रिहैब का अपन एरिया भी कंसिडर करेंगे और रिसीवेबल्स का अमाउंट भी। तो मैंने अभी एप्लीकेशन किया था उसमें मैंने वैसा ही डाला था, रिहैब का जो भी अमाउंट आने वाला है वो भी ऐड किया और जो एरिया है वो भी ऐड किया था, लेकिन उन्होंने उसमें क्वेरी निकाला कि वो उसमें से हटा दो, सिर्फ जो आप बेचने वाले हो आउटसाइड जो मेंबर्स छोड़ के वही एरिया और उतना ही रिसीवेबल आप उसमें दिखाओ। आप टेबल सी में बोल रहे हो या डी में? टेबल डी में, बट डी में तो आपको वो रो तो बोलता है एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रिसीवेबल बोलता है। हाँ हाँ तो और उन्होंने पहले बोला कि अनसोल्ड अपार्टमेंट का जो रिसीवेबल अमाउंट है वही उसमें दिखाओ। ओके बिकॉज टेबल सी करके हाँ तो टेबल सी में वो भी आता है। आपका नया रजिस्ट्रेशन था, आप ऐसा बोल रहे हो ना? यस सर, नया रजिस्ट्रेशन में तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको एडिशनल एरिया भी उन्होंने दिया है, उसका ये amount- आपका रजिस्टर्ड था, सॉरी पीडब्ल्यूए रजिस्टर्ड था नहीं जो सर, आपका परमानेंट अकोमोडेशन एग्रीमेंट है हाँ 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 वो वो रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड है सर। तो फिर ऐसा नहीं आना चाहिए। नहीं ऐसा क्या है मालूम है, उसमें भी दो व्यू है सर। ऐसा है कि एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स है ना, तो एलो को बेचा है तो वो इट इज लाइक नॉट रिसीव्ड फ्रॉम सेल कंपोनेंट, ऐसा बोले, भले हमने उन्हें सेल किया है उसको, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को दे रहे, को ओनर्स को दे रहे, तो वो डालना नहीं है। ऐसा किसी किसी का व्यू ये है, और इसके लिए कोई कोई क्या करता है सर, वो पैसा रेरा में भी नहीं लेता है, एक ऐसा भी होता है। दूसरा कोई बोलता है नहीं हमने सेल किया ना फॉर दैट मच यूनिट, मतलब दैट मच स्क्वायर दैट इज सोल्ड, तो हम लोग इसमें डालते हैं और रेरा में पैसा डालता है।
टेक्निकली तो वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो एक तो क्या है, कल को सपोज वो 50-100 फुट के लिए झगड़ा होता है तो वो बंदा रेरा में नहीं आ सकता। एग्जिस्टिंग मेंबर जो है वो रेरा में नहीं आ सकता। और दूसरा, अगर हमने रेरा में वो पैसा नहीं डाल रहे हम लोग, वो पैसा रेरा में अगर नहीं डालने वाले हैं तो वो मिसमैच ही होगा। इसके लिए लोग भी बोल रहे हैं बॉस, अगर आप एग्जिस्टिंग, मेरा बात हुआ था तो लोग बोल रहे थे एग्जिस्टिंग टेनेंट का पैसा आप नॉर्मल में ले लो और नॉर्मल में करो, और बाकी जो सोल्ड करते हो ना, प्योरली सेल है ना, वही रेरा में लेके करो। ऐसा मेरा बात हुआ था एक बार रेरा का कोई ऑफिसर नाम नहीं बताऊंगा, वैसे ही बट बताया। हाँ एसआरओ ने भी उधर बात किया ना, तो उनका भी वही कहना था कि जो टेबल सी में जितना आप अनसोल्ड का दिखा रहे हो उतना ही दिखाओ, बाकी का मत दिखाओ उसमें। हाँ, बस मेरे को भी उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि आप जो वो रजिस्ट्रेशन में वो फॉलो करने का, रजिस्ट्रेशन के बाद अपना जो है वो फॉलो करने का। तो रजिस्ट्रेशन के पहले अगर मेरे को कुछ पैसा आ रहा है फ्रॉम मेंबर्स तो क्या करने का, ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ, करंट अकाउंट में लूँ नहीं लूँ? सर एग्जिस्टिंग मेंबर्स है तो कौन पैसे को ना कौन बोलेगा, हाँ। पहली बात तो ले लो। मैं तो बोल रहा हूँ कि करंट अकाउंट में लो, इसमें मत लो, क्योंकि अभी मेरा एक चालू है, मतलब अभी मैं रजिस्ट्रेशन के लिए डाल रहा हूँ, तो ये लोग ने रेरा अकाउंट में पैसे लिया और वो 70-30 हो गए। एग्जिस्टिंग मेंबर से लिया है, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, मतलब एग्जिस्टिंग मेंबर 70-30 हुआ है। अब उसका क्या होगा मुझे पता नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दूंगा, क्योंकि मैं तो 0-0 नहीं डालने वाला। बरोबर। डिपोजिटेड तो जो आया पैसा वो लिखूंगा मैं, बराबर ना? तो अभी वो लिख के मैं डालूंगा, नेक्स्ट मीटिंग में मैं बताऊंगा वो लोग का क्या आया। वो जो पी वाले साइन होता है, अभी जो अमाउंट है, हाँ, उसको एज ए डिपॉजिट ले लेते हो और बाद में ऐसे कॉल जाते हैं। लेकिन मेरा अकाउंट में पैसा आ गया तो कैसे डिपोजिट? करंट अकाउंट में बात ही नहीं है, तो करंट अकाउंट में आया हुआ है पैसा, करंट एंड अकाउंट अभी वो एप्लीकेशन कर रहा है। नहीं, रेरा अकाउंट में आ गया, करंट अकाउंट में है तो कोई बात ही नहीं है, उसको किधर डिस्क्लोज करने का जरूरत भी नहीं है। मैं तो दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ये प्रॉब्लम है, ये लोग ने रेरा अकाउंट ओपन किया और रेरा अकाउंट में पैसा आ गया। आप रेरा अकाउंट में आगे जाके वो स्टैंड भी चेंज करेंगे, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को फ्री में दे रहे हैं, उसका कोई डिटेल्स है नहीं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं और डीम टू बी सोल्ड आउटसाइडर्स ऐसा ट्रीट करके एरिया तो मैच करेंगे ना टोटलिटी में, तभी वो रिकॉर्डेशन में आ जाएगा ऊपर। हाँ, लेकिन इधर भी नोटिंग नहीं करेंगे तो अपने भी आ सकता है कि सिचुएशन में क्यों नहीं दिया हूं, नहीं तो अगर आउटसाइडर को जा सकता था वो एरिया, अपने एग्जिस्टिंग को बेचा ही है वो। नहीं, लेकिन वो जब नोट लिखते हैं ना हम लोग पॉइंट जी में, वो तो हम लोग लिखते हैं, वो तो सब एक सर एक पॉइंट नहीं छोड़ता, मैं तो सब ही लिखता हूँ। तो अपना सेफर साइड मतलब क्या है, वो पॉइंट ही अपना सेफर साइड है सर, बराबर। अभी मैं तो वो भी मैंने बताया था, अभी मैं लोग तो साथ में भी करते हैं बहुत सारा, तो जैसे वो फॉर्म 3 करते हैं, मैं फॉर्म 5 करता हूँ, तो फॉर्म 5 करता हूँ तो उसमें भी लिखता हूँ मैं भी कि 30-70 में से 30 में गया है, और ये दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर ऑफ बैंक, ऐसा सब करके मैं लिख देता हूँ। क्यों, मुझे क्या करना है, बराबर ना? वो बैंक जाने, प्रमोटर जाने, ये लोग जमता है, तो मेरा क्या काम था, मुझे एक्सपेंस देखने का, एक्सपेंस मैंने चेक कर लिया, मेरे एवरी टाइम जब भी मैं इशू कर रहा हूँ फॉर्म 3 इशू हो रहा है तो मेरा लिमिट के अंदर हुआ है, तो मेरा फॉर्म 5 का पर्पस था, मैंने पॉइंट ही दिया 30 में से 70 में, 70 में से 30 में जा रहा है, 30 में जा रहा है, कौन से डेट को फॉर्म 3 होगा, ऐसा लिख देने का। अब इसमें और एक प्रॉब्लम है, एक ये मैंने बिल ले लिया, हाँ, उसको पेमेंट ही नहीं, वो केस में टेबल एफ का कैपिटल अकाउंट में उसको मैच होना चाहिए ना, कितना खर्चा हो रहा है, क्रेडिटर खड़ा है टेबल एफ ना, तभी वो कैपिटल शॉर्ट गिरता है, तो इधर तो खर्चा दिखा दिया हमने, बैलेंसिंग फिगर नहीं होता वो, फिर हम नोट्स में डालते हैं नीचे, वो नोट में डालना कि पड़ेगा। ये इसमें से ये एक हमने एक बैलेंसिंग फिगर पकड़ा है, दूसरा क्योंकि बैठेगा ही नहीं अकाउंटिंग सिस्टम में। दूसरा वर्ड लॉजिकली अगर देखा जाए तो जितना क्रेडिटर माइनस करके अगर हम खर्चा लेंगे तो कोई इशू, आप अगर इतना मेहनत कर पा रहे हो तो ओके। अप्रोच रखेंगे। इसके लिए एक बात बोलूं, फॉर्म पढ़ोगे ना तो फॉर्म में पेड वर्ड नहीं है, नहीं, इनकर्ड वर्ड है, incurred इनकर्ड वर्ड है, तो word वहां पे खत्म हो गया बात, नीचे नोट पे लिख दो ना, खत्म हो गया फॉर्म। इसके लिए नहीं, incurred है वो तो incurred इसलिए सेफ है हम लोग सेफ है। हाँ, मैं जीएसटी का भी ले लेता हूं उसमें इंक्लूड करके, जीएसटी कॉस्ट है, नहीं लेकिन वो बड़ा था ना, अगर नहीं वो तो वो इफ यू आर टेकिंग क्रेडिट, नहीं अभी भी वो चल रहा है लाइन, नहीं, अगर वो आपका रिसिप्ट है तो ना, एक्सपेंस का बोल रहा हूँ, एक्सपेंस का तो टेबल बी के नीचे बोल रहे हो, टेबल बी के नीचे लाइन है ना कि ऑल एक्सपेंसेस जो भी है इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें इंक्लूड नहीं करके वो तो रिसीवेबल के लिए सर, रिसीवेबल सेल्स वाले के लिए, सेल्स वाले के लिए
एक्सपेंस का तो वो आपका एक्सपेंस ही है, हम लोग वो तो पीएनबी में डीबीटी करते हैं, हाँ वो तो है, 1 अप्रैल 19 से तो वो चालू है। वो हमारा खर्चा ही है, वो लेना ही है। वो लाइन इज फॉर योर सेल्स, स्टैम्प ड्यूटी, सोसाइटी फॉर्मेशन एंड जीएसटी। बोल रहे हो ना, वो दोनों बात आरटीसी का बॉक्स प्राइस ही है, हाँ अलग से कुछ- बरोबर। the negotiates at box price अभी सिंपल। गणेश जी का पॉइंट थोड़ा सा डिफर, मतलब प्रैक्टिस में डिफर हो रहा है। जैसे उन्होंने बोला कि इनको वो क्वेरी आई और मेंबर्स का निकालने बोला टेबल डी से, तो अभी तक मेरे को ऐसी क्वेरी नहीं आई है। हम वही अप्रोच कर रहे हैं कि टेबल डी में ऐड कर रहे हैं, तो अभी मैं भी वही कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सब रेरा अथॉरिटी का क्योंकि वहाँ पे 70% डालने दिखा वो amount, या फिर टेबल में ऐड कर दें। बट सर को क्वेरी आई ना, और गणेश जी रिसेंट में क्वेरी आई ना। रेरा से बात हुआ ना, रेरा में उन्होंने मुझे ऐसा ही बोला, क्योंकि वो ये लोग तो हमारे गिनती में ही नहीं है, मतलब हम लोग का जो है ना रेरा मतलब ओनली फॉर क्या बोलते हैं फ्रेश सेल्स ऐसा। नहीं, अगर एज्यूम करें एग्जिस्टिंग मेंबर ही सब पूरा उठा ले माल, तो फिर वो केस में कैसा हो जाएगा? तो ये लोग को रेरा एप्लीकेबल ही नहीं है ना सर, अल्टीमेटली रेरा एप्लीकेबल ही नहीं है ना उसको, तो वो रेरा में नहीं जा सकता, उसको तो सिविल कोर्ट में ही जाना है कुछ हुआ। बराबर। न्यू फ्लैट ले लिया तो है ना, न्यू फ्लैट अगर जो न्यू तो नया होगा ना, एग्जिस्टिंग मेंबर न्यू फ्लैट उठा रहे हैं वैसे पूरा, तो एग्जिस्टिंग मेंबर न्यू फ्लैट ले रहा है, तो नए में आ गया, नए में आ गया वो थोड़ी पी ट्रिपल ए का पार्ट है, वो तो नया एग्रीमेंट वही एडिशनल बाय करता है। नहीं, वो वही प्लान पास कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। यश बीकेसी आने वाला था तू, दूर है ना, नहीं आज सैटरडे है ना, उसके लिए नहीं आया। कहाँ रहता हूँ सर सैटरडे को कहाँ आएंगे वहां पे? मैं पिछले वेडनेसडे को ही आके गया सर। तो बोला रहता मैसेज दे रखते थे मीटिंग करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे भी ऐसा डेट नहीं फिक्स है। करने में बहुत इश्यू हो रहा है, तो आपका डेट बता दो, वही कर लेते हैं अभी फाइनल। अरे सर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं सर और एक चीज बोलना चाहूंगा सर कि कंप्लीशन ऑफ रेरा प्रोजेक्ट है ना, भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं उन लोगों को। मतलब मैं अभी एक मेरा पेक्यूलियर केस आपको बताता हूँ कि प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट था हमारा। तो पहले क्या था कि देयर वाज 2018 से लेके 2021 तक देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि प्लॉटेड एरिया का रेरा लेना या नहीं लेना करके। तो जिन लोगों को एनए भी आ गया था ना, उन लोगों ने प्लॉटेड प्रोजेक्ट का रेरा ले चुके हैं। अब क्या है, एनए आ गया, इसका मतलब क्या इट इज, एनए आ गया मतलब क्या कि उसका कंप्लीशन हो गया है करके। लेकिन फिर भी वो अभी आजकल वो लोग ओसी इशू नहीं कर रहे उसकी, क्योंकि वो बैकडेट में कंप्लीशन है। ओके, वो लोगों का सिस्टम का ही एरर है, वो लोग इशू नहीं कर पा रहे करके प्लॉटिंग में ना, प्लॉटिंग के अंदर। बाकी नॉर्मल वाले कर रहे हैं उन लोग। हाँ हाँ, नॉर्मल वाले हो जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपने इसने क्या बोल रहे हो? अभी सिर्फ अगर सपोज अपने जो मतलब एमसी जो भी परमिशन देने वाली अथॉरिटी है, अगर उसने उनको ईमेल भेज दिया कंफर्मेशन, तो वो दे रहे, वो दे उसी रहे। में भी अभी वो आ गया, राइट? राइट, कंप्लीशन में भी आ गया। कंप्लीशन में तो है, बट पहले भी था, बट एप्लीकेबल अब भी किया। हाँ, Earlier हाँ। भी हम लोग भेजते नहीं थे ना, हाँ भेजते नहीं थे, बट ईमेल नहीं भेजते थे। जब से ये सीसी वेरिफिकेशन हो, हाँ उसके अंदर वो है, वो भी है, दैट इज हाँ, जो जितने भी ऑफलाइन अथॉरिटीज है उनका मिल जाना चाहिए कंपल्सरी। माड़ा में ना, माड़ा, सिडको, टीएमसी, अभी हम लोग जो अपन यहाँ का वीवीएमसी, वीवीएमसी,
हमारा बीएमसी से सब बीएमसी है ना? अपन वेले हमारा बीएमसी कुछ नहीं आ रहा। बहुत अच्छा। यश का भी मैनुअली जाता रहेगा ना ईमेल? हाँ, हमारा मैन्युअली ईमेल जाता है। एंड नासिक में गणेश सर? इधर भी मैनुअली जाता है सर। एप्लीकेशन करने के बाद उनको CC और एप्लीकेशन OC नंबर देना ना? पड़ता है। CCNS। सॉरी क्या बोले लास्ट में? जो अपन एप्लीकेशन करते हैं ना सर, तो एप्लीकेशन नंबर उनको देके फिर वो मेल लेते हैं। डायरेक्ट right, मेल right. करते ही नहीं वो। CC और OC में? और नहीं, उसी का तो अभी फिलहाल किया ही नहीं सर किसी का। ओके। और जिनके गए मेल फिर भी वो वही क्वेरी फिर से रिपीट हो रही है कि मेल मिला। रिपीट होती है, सही बात है। वो SRO को बोल के फिर मेल validation। भेजो। तो भी नहीं होता। मतलब अगर हमने वो ईमेल का स्क्रीनशॉट भी लगाया तो भी उनकी क्यूरी आती है, नहीं बोले जब तक हमको एसआरओ नहीं बोलेंगे ना हम नहीं मानेंगे। स्क्रीनशॉट लगाया है एप्लीकेशन के साथ तो भी नहीं मानेंगे वो लोग। महाराज के थ्रू ये एप्लीकेशन है। पंडित ऑफिस में वैभव का सर मैं भी औरंगाबाद से हूँ। ओके। ओके। यस सर के फर्स्ट टीम टाइम से ज्वाइन किया ऑनलाइन? यस सर। सर Okay, वैभव okay, इज न्यू टू रेरा प्रैक्टिस। उसने अभी 6 महीने से रेरा प्रैक्टिस चालू की है। सो मतलब ही इज वेरी गुड एट ऑल दिस थिंग्स, एक्सटेंशन वगैरह। तो मैं बोला यार व्हाई डोंट यू जॉइन दिस स्टडी सर्कल, तो उसको भी ज्वाइन करवाया है सर ऐसा। वेरी गुड। अभी आप लोग में से किसी का एक का ऑनलाइन सेशन लेना है नेक्स्ट 4 मंथ्स में। हु वांट टू वॉलंटियर? वॉलंटियर ऑनलाइन क्यों? यहाँ पे आ जाएगा यश, तो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों आ जाओ। सर आने को तो सर आ जाएंगे सर, वो कोई इशू नहीं। सैटरडे नहीं रखेंगे? सैटरडे नहीं रखेंगे। एक दिन टॉपिक बता सर देना हमको। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटरडे फ्राइडे रेरा में काम करके सैटरडे इधर करेंगे, वो कोई इशू नहीं। डन, वही सुनना था हमको। तो टॉपिक डिसाइड करके खाली हमको इन्फॉर्म कर देना बस। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम। और सर अगर मेरा वैभव का भी अच्छा है एक्सटेंशन वगैरह का, तो एक एक्सटेंशन का भी सेशन रख देना। हाँ कर सकते हैं सर, उसको काफी इनसाइट्स भी पता चले हैं प्रैक्टिकली। मतलब वो 2-3 बार रेरा के ऑफिस में खुद जाके भी आया, तो उसका भी कर सकते हैं सर, वो कोई इशू नहीं। तो वैभव नेक्स्ट मंथ रखे चलेगा ना सर? यस सर का होने के बाद करते हैं। we want to learn the tricks how to handle the cases, variety of cases. सर मैं भी अभी सीख रहा हूँ। हम सब सीख रहे, वी आर ऑल इन द सेम बोट। हर एक क्या बोलते हैं एप्लीकेशन कुछ नया सिखा रही है। बराबर है सर। और ऑफिसर लोग इतने स्मार्ट है, वो हमारी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे। बराबर है सर। कुछ नहीं रहा तो फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढ लेंगे, इधर लिखा नहीं है। सो मतलब मैं बोला यार कुछ है नहीं, वो नहीं रहता तो क्वेरी नहीं थी मेरे को। टेक्निकल से देयर वाज नो क्वेरी। लास्ट अभी टेक्निकल क्लियर हुआ, टेक्निकल में कुछ भी नहीं निकाला जिसका मेरे को ज्यादा डर था। फाइनेंस वाले ने क्वेरी निकाला कि आपने फॉर्म 3, मैंने चेंज ऑफ बैंक अप्लाई किया था, तो फॉर्म 3 में क्या हुआ, मैंने दोनों अकाउंट लिख दिया, ओल्ड अकाउंट ऑल्सो एंड न्यू अकाउंट ऑल्सो। तो उनका आया कि यू जस्ट मेंशन ओनली द ओल्ड अकाउंट। सो दैट वाज अ स्मॉल क्वेरी इन फॉर्म 3। बाकी क्वेरी था वो फॉर्मेट बी में कि ऑर्डर सर्कुलर नंबर नहीं लिखा है, और एक क्वेरी था प्रमोटर लैंड ओनर टिक निकालो, एक टिक। सो तीनों क्वेरी कोई हाथी घोड़ा नहीं थी, बट अभी उसने 15 दिन खींच लिया। हाँ, स्ट्रेच कर देता ना, टाइम निकलता है। और क्लाइंट को वो बैंक वाला चेंज ऑफ बैंक अकाउंट क्यों हुआ, बिकॉज उसको फंडिंग हुई है। अच्छा, दूसरा बैंक अकाउंट खुल गया, उसमें सब ट्रांजेक्शन भी चालू हो गए। अभी तक तो हम उसमें ही है कि भाई मेरा अभी तक ओल्ड अकाउंट टू न्यू अकाउंट में शिफ्ट कर रहा हूँ। So it has become very how to tackle it professionally, where client work is also done and there is no liability on us. इधर कट ऑफ नहीं है। मैं कौन सा फंड ट्रांसफर डिक्लेरेशन देते हैं ना बनो इतना फंड है, एज ऑन ये फॉर्म 3 है और इतना फंड हम लोग ट्रांसफर करेंगे। उनका
कब करेंगे, न्यू फॉर्म में तो कर नहीं सकते, इधर तो कंटिन्यू चालू रहना है, अगर बढ़ते रहेगा तो डिक्लेरेशन का चेंज नहीं होता। और एक एक महीना जा रहा है प्रोसेस में। रजिस्ट्रेशन में भी वही हो रहा है, अगर क्वार्टर चेंज हो गया तो लेटेस्ट वाला फॉर्म की ऑफिस होगा। ओहो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं। वो कर रहे 20 तारीख का डेट चले गया तो रजिस्ट्रेशन में टाइम नहीं, चलेगा, रजिस्ट्रेशन में तेरा बोल वो के क्वार्टर खत्म हो गया ना, हाँ, एक्सटेंशन तेरा एक्सटेंशन में दिन खींच गया। नहीं रजिस्ट्रेशन में भी कर, अच्छा रजिस्ट्रेशन में कर रहे हैं, ओके। इसमें भी मतलब दिन खींच गया ना, तो लेटेस्ट दिन या वाला तो जोड़ देंगे, लेकिन फिर इधर 20 दिन दिया तो नया डाला। अच्छा मेरे में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन किया था अगस्त में कुछ, एंड सीसी मेरा वैलिडेशन एक्सटेंशन में आया ना, मेरा नया में सीसी वैलिडेशन मेरा हुआ नहीं था। सीसी वैलिडेशन मेरा सितंबर में कुछ हुआ, और बाद में मेरा अक्टूबर में, मतलब मेरा यहाँ पे ऐसे हो गया था कि फाइनेंस क्लियर हो गया था। ओके, इसलिए वो हाँ, सो दैट वाज अ पॉजिटिव। या फिर फाइनेंस में जो क्वेरी था वो रिलेटिंग टू अदर क्वेरी था, तो वो उसमें वापस नहीं जा सकते। अभी एक चीज अच्छा हो गया है कि नए वेबसाइट में, पहले ऐसे था कि अगर आपका डेस्क 1 डेस्क 2 डेस्क 3 में से कोई भी डिपार्टमेंट वाला कभी भी क्वेरी निकालता था और प्रोसेस कर देते थे सब लोग। अभी इसमें बेस्ट थिंग ये है कि इट कैन नेवर गो बैक एंड जनरेट अ न्यू क्वेरी अनलेस एंड अनटिल द नेक्स्ट डेस्क ऑफिसर जनरेट्स द क्वेरी। सर मेरा डेस्क 1 से डेस्क 2 में गया, वापस डेस्क 1 हाँ, वो वैसे हो सकता है। पहले ऐसे होता था कि लीगल टाइटल रिपोर्ट ग्रीन दे दिया और ग्रीन सिग्नल दे दिया और उसमें फिर क्वेरी निकाला, हाँ वो होता था बरोबर। हाँ, पहले वैसे होता था, अभी वो बंद हो गया है Right, ये right. नए वेबसाइट में। बरोबर। पहले आप देखोगे ना तो लीगल टेक्निकल और इसमें आता था, एक में ही आया क्वेरी। फॉर एग्जांपल लीगल में आया आपका क्वेरी, टेक्निकल और फाइनेंस में नहीं आया फर्स्ट टाइम। बट जैसे ही आपने लीगल का रीसबमिट किया और नेक्स्ट उसमें लीगल टेक्निकल फाइनेंस में तीनों में क्वेरी आएगा। वो पहले होता था। हाँ, क्योंकि पहले कैसा था मन में क्या, सबके लिए ओपन 1 में भी लीगल टेक्निकल फाइनेंस, 2 में भी लीगल टेक्निकल फाइनेंस, ऐसा कुछ। हाँ, 2 टीम लेकिन था। अभी शायद है ना 2 में सिर्फ टेक्निकल ही दे रहा है, ऐसा कुछ सिंगल है। हाँ, फाइनेंस और लीगल नहीं आता। तो उसके लिए क्या हो रहा है अभी, ये चीज अच्छा हो गया है कि हमको एक बार एक डिपार्टमेंट क्लियर हो गया तो उसमें वापस क्वेरी भी नहीं आ रहा है और रीसबमिशंस भी हमारे एंड से भी कम है ऐसा। और कुछ टेक्निकल और कुछ किसी को प्रैक्टिकली कुछ डिस्कस करना है? हाँ सर, मुझे एक था क्यूरी रिहैब में ही। तो जो अभी अपन फॉर्म 3 के टेबल सी में इंडिविजुअली अभी रिहैब का फ्लो, मतलब फ्लैट वाइज डिटेल्स देना पड़ रहा है, बराबर? बराबर तो उसमें कॉस्ट ऑफ एडिशनल एरिया, मतलब अपन जो उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करने वाले हैं वो है, यस वो है, बराबर? और अमाउंट रिसीव्ड मतलब अब तक डेट ऑफ सर्टिफिकेट तक मिला वो, डेट ऑफ सर्टिफिकेट तक जितना मिला वो उतना, बराबर? करेक्ट। एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में कौन सा डेट आएगा सर फिर? PAAA का डेट आएगा सर। PAAA का है ना? हाँ, PAAA हुआ रहेगा तो PAAA, अगर PAAA नहीं हुआ रहेगा तो डेवलपमेंट DA का डेट डाल देते हैं। हाँ, DA का डेट डाल देते। ओके। और सर अभी उन्होंने कैसा किया है, एक किया अभी जितना वो रेंट देने वाले हैं और जितना वो एडिशनली उनसे चार्ज करने वाले हैं वो एक्स्ट्रा सेट एरिया ऑफ का, कर दिया। तो नेट ऑफ करके लिखा है, तो अपन ने विदाउट रेंट वाले ही अमाउंट कंसिडर करना चाहिए ना फिर? नहीं, दोनों बाजू आपको करना पड़ेगा। बट ओके, बट रेंट वाला तो अपन फॉर्म 3 में दिखा देंगे ना, कॉस्ट बोल के। हाँ, रेंट वाला कॉस्ट करके दिखाएगा और यहाँ पे विड्रॉल में आपको विड्रॉल में दिखाना पड़ेगा अमाउंट रिसीव्ड करके। तो वो नेट ऑफ करके नहीं दिखाना पड़ेगा ना अपने को, वो जितना एक्स्ट्रा? नहीं, दैट विल बी प्रेजेंटेशन, खाली प्रेजेंटेशन वाइज रॉन्ग होगा, बाकी तो ऐसे चलेगा, उसमें कुछ इतना बड़ा कुछ बात नहीं है, बट इट इज बेटर टू शो डिफरेंटली। बट इट विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन माय फॉर्म 5 आल्सो, और फॉर्म 3 के बैंक में मेरा शॉर्टफॉल दिखेगा। बट ये एज सच ही इज अ को प्रमोटर, तो रेरा का जो 70-30 का जो ये है उसमें वो आएगा नहीं। बट अभी जो आज के तारीख में हम फॉर्म 5 बना रहे हैं उसमें तो अपन टोटलिटी लेते हैं, बट यू कैन गिव अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, या फिर तो खुद भी एक क्लैरिफिकेशन नीचे रिकंसिलिएशन में वो लिखे कि डिफरेंस क्यों है। हाँ, क्योंकि अभी काफी जगह वो हो गया कि उसको जो रेंट देना है, कॉर्पस देना है, और उसको जो मैंने एडिशनल जगह दी है वो सब नेट ऑफ हो रही है और सिर्फ GST का पैसा उससे लेके भर रहे हैं।
या फिर कलेक्ट करके एक रिवर्स एंट्री भी कर सकते हो, मतलब इसका कुछ ये नहीं है, मतलब सिंगल डे कलेक्शन एंड सिंगल डे पेमेंट। बिल्डर नहीं मानता है ऐसा। नहीं, लेकिन वो बैंक में तो मिसमैच ही दिखने वाला है, कभी भी तुझे जाएगा तो उसका solution? सोल्यूशन इन द सेंस के तू, मैं तो बोलता हूँ कि नेट ऑफ करे नीचे लिख के दिखा दे तो क्या बैंक तेरा मैच होगा, अदरवाइज बैंक भी नहीं होता। नहीं तो वहां पे जो रिहैब है उधर मेरे को उससे 10 लाख रुपया लेना था, तो वहां पे मैं 10 लाख रुपया सेल कंसिडरेशन दिखाऊंगा कि नहीं? 10 लाख देना तो 10 लाख देना तो जीरो कर देंगे। हाँ, उधर 0 आएगा कि 10 लाख आएगा? एडिशनल एरिया सेल दिख रहा है। या तो 10 लाख डालना पड़ेगा ना। या तो दे कॉर्पस वाले में 10 दिखा दे, और ये जैसे बोल रहे विड्रॉल में दे रहे, लेकिन वो तेरा विड्रॉ बैंक के साथ मैच, बैंक के साथ सिर्फ मेरे को तो फॉर्म 5 में तुझे वो लिखना और फॉर्म 3 पड़ेगा। बैंक में इशू है। हाँ, तो तुझे वो लिखना पड़ेगा वहां पे विड्रॉल में, इट इज इंक्रीज बाय सो मच अमाउंट, दिस मच अमाउंट बिकॉज ऑफ के ये करके है, इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट जो भी है करके वो एक दिखा के लास्ट बैलेंस तेरा मैच कर दे। ये अल्टरनेटिवली बिल्डर के पास पैसा है तो करेंट से उसको बोलो तू उधर डाल दे रहे राम, अगर उसके पास पैसा है तो इट कम्स विद अ कंडीशन। अगर हो रहा है तो दिखा सकते हैं ना। हो हाँ, तो रहा है नहीं तो हो रहा है इसके लिए प्रॉब्लम है ना, हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेटअप जो हो रहा है, जो आ रहा है वो उसके अगेंस्ट रिसीवेबल के अगेंस्ट आ रहा है, और जा रहा है वो जो देना है वो जा रहा है। नहीं, प्रॉब्लम इधर ये डिस्कशन हो रहा है कि अगर हम एक पॉइंट तो उसका क्लैरिफिकेशन हो गया पहले, बराबर है। दूसरा पॉइंट अभी ऐसा डिस्कस हो रहा है कि अगर यही चीज फॉर्म 5 में हम जब डालेंगे, फॉर्म 3 का तो हो गया, अभी बोल रहे हैं कि फॉर्म 5 में क्या करेंगे, तो उसके लिए वो बोल रहे हैं कि आइदर यू कैन पुट अ कमेंट, और सेकेंड थिंग कि चाहिए तो आप खुद ही करंट अकाउंट से ये अकाउंट में कलेक्शन अकाउंट में डाल के उसको रिकंसाइल करो। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास वैसे, क्योंकि दिस डेटा इज अवेलेबल जीएसटी की जब स्क्रूटिनी होगी, इनकम टैक्स के रिटर्न्स, फॉर्म 3 फॉर्म 5, क्या करना है? कोई स्मार्ट ऑफिसर रहा, ये 4 चीज उसके पास रही तो कितना कुछ डेटा निकाल सकता है। टेबल सी में जो अमाउंट रिसीव होता है, जो भी अमाउंट है, वो टेबल एफ में क्या दिखा देगा आपको, मतलब पूरा का पूरा दिखा देगा कि उसके में वहाँ पे 70% करते हैं? नहीं पूरा दिखा दे। पूरा दिखा देगा ना, वैसा प्रैक्टिकली मैं 70% करता हूँ। प्रैक्टिकली वैसा देखा तो पॉसिबल, क्योंकि पूरा दिखाएंगे और उसमें बैलेंस पड़ा है। उसमें टेबल एफ में क्या है सर, ये टेबल एफ में बोला है एक्चुअल कस्टमर रिसीव्स बोला है, बराबर। कंप्यूटर से तो एआई से मैच होगा ही होगा किधर ना हाँ, किधर। पर टेबल एफ का आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट टेबल एफ जो बोल रहे हो आप, वो क्या है कि तीन चीज में बाइफरकेट हुआ है, एक एस्टिमेटेड हुआ है, एक एक्चुअल हुआ है और एक प्रोविजनल हुआ है। तो अभी तो आप एक्चुअल जो लिख रहे हो तो जितना भी बैंक में आया, भले वो 70 में आया, 30 में आया, मेरा रेरा कलेक्शन में आया, तो मेरा रेरा कलेक्शन में जो भी आया है वो टेबल सी से ही होगा, तो मैं टेबल सी का ही अमाउंट लिखता हूँ उसके लिए, उसको 70%। टेबल सी तो तुम्हारा 100% वाला रहेगा ना। हाँ, बट लेकिन जहाँ पे अगर 70%, लेकिन हम लोग टेबल बी का हिसाब दे रहे हैं ना अपन। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल लिख दिया मैंने, बैलेंसिंग लोन लिया है और बैलेंस वो भी किसको? कस्टमर Customer से- रिसिप्ट इज बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि मेरा लोन आया है, पूरा पैसा आया, मैं बोलता हूँ लोन मैंने यूज किया है। यूज किया, मैंने मैं capital उल्टा लिखा। चलता हूँ। बैलेंसिंग कैपिटल तो मालूम है, कैपिटल मेरा कॉस्ट भी मालूम है, तो बचा हुआ रिसीट मैंने नहीं यूज किया वो। लेकिन उससे इतना फर्क मैं नहीं कैपिटल पड़ता। बैलेंसिंग करता हूँ बिकॉज कस्टमर रिसिप्ट को मैं लिंक करता हूँ, अगर उसका सब रेरा अकाउंट से गया है तो उसको मैं लिंक करता हूँ 70% अकाउंट के पैसे से। क्वेश्चन ही नहीं, 100% लेते तभी क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि वो टोटलिटी काउंट होगा, क्योंकि आप नीचे जो कंपेयर कर रहे हो वो टोटल कॉस्ट से कर रहे हो, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट से कर रहे हो, बराबर है। तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज ऑफ द होल प्रोजेक्ट। नहीं वो तो एक्चुअल कॉस्ट हो। नहीं, नीचे तीनों में आपका जो भी है कंपेरिजन। हाँ, नहीं, एस्टिमेटेड और इनकम दोनों। एक्चुअल कॉस्ट है, थर्ड कॉलम एक्चुअल कॉस्ट, थर्ड एक्चुअल है, बट फर्स्ट है वो एस्टिमेटेड है। फर्स्ट तो वो टेबल ए से मैच होएगा। फर्स्ट तो कुछ भी लिखो यार, वो तो एट टाइम ऑफ परचेज फर्स्ट तो कुछ भी लिखो। हाँ, बट बेसिकली योर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट शुड, जो भी टोटल आपका फंड्स जो है वो आपका मोर देन टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट रहना चाहिए, नहीं तो वो टेबल एफ में भी वो क्वेरी आता है, बराबर है। जैसे कि अगर आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 10 करोड़ रुपया, अभी आपने दिखाया टोटल कलेक्शन आपका 9 करोड़, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम क्या किए थे जब वो टेबल नया नया आया था, तो हम लोग ने जो कस्टमर्स रिसीव्ड का जो अमाउंट था ना, वो हम लोग ने ASR रेट लिख दिया था,
तो हम लोग का जो टोटल आ रहा था वो लेस देन ये टोटल फंड्स का एस्टिमेटेड का, हाँ तो शॉर्टफॉल दिख रहा था। आप कैसा तो उसके लिए हम लोग ने बाद में चेंज अप्रोच किया कि वो ज्यादा लिखते हैं ऐसे करके एस्टिमेटेड में, और एक्चुअल में तो हम लोग 100% ही लिखते हैं, क्योंकि वो जो अमाउंट है भले वो मेरे पास तो एक्चुअली इतना पैसा ही आया है कस्टमर से, भले अभी वो रेरा में इतना 70% मेरा ब्लॉक है, 30% इधर ऐसे करके, तो उसके लिए बाकी आपका प्रोविजनल है वो तो आप कुछ भी लिख सकते हो बस। सो जो भी हम करें टेबल जी में कमेंट करें कि मेरा बैलेंसिंग फिगर कस्टमर रिसिप्ट है या कैपिटल अकाउंट है या अनसिक्योर्ड लोन है, जो भी है वी हैव टू पुट अ कमेंट, बिकॉज सबका इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और सब राइट है। बैलेंसिंग फिगर करके कुछ लिखने का जरूरत है ही नहीं किधर भी, क्योंकि तू तो जब उधर डिमांड करेंगे तभी नहीं ठीक है, हम मैं कमेंट में डाल देता हूँ, बिकॉज वो टैली करने के लिए मेरे टैली से एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, थोड़ा दो फिगर मैच होगा, तीसरा नहीं होगा। मतलब कैपिटल इन अ प्रोप्राइटरशिप वो कैपिटल Match जो आया है वो तो होना चाहिए। बहुत सारी जगह गया हुआ है, एक में ही 4 प्रोजेक्ट चालू है मेरे। हाँ तो तू उसमें कुछ भी कमेंट लिख के कर सकता है कि हाँ। ये मैंने ये इसमें अभी डर एक ही है, टेबल सी का वैल्यू अगर ले लेंगे ना उनको, वो क्या पहले टोटलिटी में मैच करके देखेगा। हाँ हाँ, तो ये सरकार को बराबर लग रहा है कि टेबल सी का वैल्यू वहां पे रिसीव वैल्यू खत्म है, तो उसको इधर टैली हो गया, सी और एफ टैली हो गया। हाँ या तो उससे कम रखेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेक श्योर कि जो सिंपल प्रोसीजर है ना वो करें तो अपने लिए भी अच्छा है, नहीं तो इन लोग को और कॉम्प्लेक्स करने बैठे ही हमारा काम। अभी पहला नोटिस तो है थ्रू ही जनरेट होगा, मेरे लिए इतना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, मिसमैच किधर हो रहा है वो देखेंगे और फिर नोटिस शूट करेंगे। एफ का तो मुझे नहीं लगता किसी को आया नहीं है अभी तक, मुझे भी नहीं नहीं, और नीचे का जो टेबल टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना उसका ही ज्यादा क्वेरी है। हाँ, बाकी बाकी कोई कोई ऐसा क्वेरी नहीं है, query एक्चुअल नहीं। एक्चुअल का भी कभी क्वेरी नहीं है, कोई भी मेथड से करो कुछ। आपका मेन कभी भी जो भी क्वेरी आएगा टेबल बी का आएगा या फिर टेबल सी का आएगा, बी तो रेयरस्ट ऑफ रेयर है, बी और सी में ही आएगा, बाकी कुछ नहीं। जहाँ पे आप फॉर्म 2 का अमाउंट ले रहे हो मिसमैच मतलब मिनिमम लिखना है उसमें कुछ ये किया है वो वैसे सब आएगी आपकी क्वेरीज। कभी अगर इवेंचुअली इफ योर बिल्डर गेट्स डिफॉल्टेड देयर इज वन, हाँ प्रॉब्लम कभी आएगा बिल्डर गेट्स डिफॉल्टेड, अगर आपका बिल्डर अच्छा है कुछ ये नहीं है तो कुछ इतना कुछ भी प्रॉब्लम है ना एएफएस बोल के जो भी है, हाँ। प्रॉब्लम वहां पे ही खड़ा होगा जहाँ पे तुम्हारा अलॉट ही जाएगा रेरा में, और हाँ, तभी बिल्कुल। प्रॉब्लम होने वाला है, बाकी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बराबर। और कंप्लेंट्स में भी इतना ये नहीं है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, वी कैन ऑल्सो डू कंप्लेंट्स ऑल्सो ऐसा, क्योंकि उन लोग एएफएस ही चेक करते हैं, एएफएस एंड अलॉटमेंट लेटर अभी 16 का डिटेल डालना नहीं पड़ता है क्या? डालना पड़ता है डालना बट वो जो हम लोग सोल्ड अनसोल्ड पहले से नहीं नहीं वो नहीं, वो बंद हो गया लेटर हेड वाला। वो एक्सेल में आ गया, ये बोले 70% एक्सेल में आ गया। क्या बोल रहा हूँ? यही है ना मींस हाँ फाइनेंस। हाँ हाँ ये 1095 दिख रहा है ना, हाँ। टेबल सी से आया हुआ है। हाँ तो वही है, मैं भी वही बोल रहा और हूँ। ये मैं 70% लेते हैं। वो मैं 70% ले रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो बैंक में जो रेरा का पैसा है उतना ही मैंने उस प्रोजेक्ट में यूज किया। नहीं उसमें गड़बड़ किधर होगा सर, जो बोल रहे हैं ना टेबल सी से मेरे पास आया हो लेकिन मेरे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है समझो, तो माइनस कर रहा हूँ। हाँ वो बैलेंस करके हाँ हाँ, अभी मेरे को देखना पड़ेगा ना, अगर मैंने निकाला ही नहीं तो मैंने यूज कैसे किया, तो मैं गलत ये हो जाऊंगा, तो बैलेंस को माइनस करके देना पड़ेगा, तो 70% सेफ है पैसा लेना उसमें। तो जो बेस्ट वे है उससे करने का सॉल्यूशन ऑप्शन, जिसका जो जस्टिफिकेशन दे सकता है वैसे करो। बस नए प्रोजेक्ट में कुछ अप्रोच चेंज करना है तो उसको देखना पड़ेगा। मतलब आप 70% क्यों ले रहे हो? 100% ना लेने के भी लॉजिक क्या है? नहीं नहीं, उससे 100% तो 30% तो तेरा पर्सनल यूज के लिए भी हो सकता है। मतलब मैं टेबल बी का हिसाब दे रहा हूँ ना। देखो अभी आपका तो पैसा हिसाब 1 किसका करोड़ दे का रहा आ है? गया, चलो तो आप क्या लोगे 1 करोड़ रुपए लोगे, लेकिन बैंक में 50 लाख पड़ा है, तो आपने यूज किधर किया उसका? वो ऐसा ही पड़ा था, तो 50 लाख ही यूज किया, ऐसा मीनिंग होता है उसका, तो फिर वो वापस गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ तो फिर 1 करोड़ पूरा विड्रॉल दिखना चाहिए, और बहुत वो मैच नहीं होगा। वैसे भी मैंडेटरी तेरे को 70% ही देखना है ना, तेरे को 30% का तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना, तो इसके लिए तो डिपेंड करता है। थोड़ा सिंपल है, टेबल सी से स्टेट अवे हाँ हाँ हाँ, बराबर आप बराबर। बोल रहे हो फिर मैं बैंक उसको 70% करो। मैं कहाँ से उठाता हूँ? मैं टेबल ई से उठाता हूँ। हाँ मैंने उसको दिया हुआ है लिंक टेबल ई से, हाँ प्रोवाइडेड के उसका टेबल ई में रेरा अकाउंट में सब पैसा है तो, हाँ वरना वो भी मेरा मॉडिफाई होता है।
अगर उसका सब पैसा रेरा अकाउंट में नहीं आया है हाँ तो मैं क्या ले रहा हूँ कि उसका 70% जो रेरा अकाउंट में है वो माइनस द बैंक बैलेंस, मेरा फॉर्मूला वो लिंक है। इसका भी राइट है फॉर्मूला के डायरेक्ट, करंट अकाउंट है उसमें भी पैसा आया रहेगा तो मतलब तभी उसका सिचुएशन चेंज हो जाती। फिर मैं टेबल सी का 70% ले रहा हूँ, बट मैं ले रहा हूँ 70% ही, बट फॉर्मूला मैंने तभी क्या कर दिया कि समझो उसका अलग अलग जगह आया पैसा, तो मैंने टेबल सी में जो पैसा आया उसका 70% मैंने ऐसा बोला कि आई यूज फॉर द प्रोजेक्ट। मेरा और एक क्वेरी था, अगर सपोज दो पार्टनर है बिल्डर फॉर्म के, और उसमें एक पार्टनर ने पर्सनल में सीसी लिया हुआ है, मतलब ओडी लिमिट लिया हुआ है, और वहां पे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक को, और वो पैसा यूज कर रहा है, तो वो पैसा फाइनेंस कॉस्ट में क्यों नहीं, बिकॉज उसका प्रोजेक्ट का कोई मॉर्गेज नहीं है ना। करेक्ट, हाँ सिक्योर नहीं है वो, टेक्निकली हाँ। तो पार्टनर से ही लिया हुआ है हाँ। ऐसा दिख रहा है। वो कैपिटल इंटरेस्ट टाइप में ही हो जाएगा, लोन हाँ। फ्रॉम पार्टनर जैसा हो गया। तो हाँ तो या तो फिर इधर दिखाने के लिए तो वो नहीं होता है, नहीं होगा, हाँ। क्योंकि इधर कैसा है, मतलब हम लोग अगर उसको लोन इंटरेस्ट पे करने के लिए भी पैसा दे रहे हैं ना, तो हम लोग उसको दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो नहीं दे रहे हैं। और फॉर्म 3 तो स्पेसिफिकली बोल रहा है एनी पेमेंट डन टू एनबीएफसी फाइनेंशियल, वो बोल रहा है, तो हम लोग इधर तो दिखा नहीं सकते। पार्टनर को इंटरेस्ट दे सकते हैं बट वो इधर दिखाना सकते हैं, नहीं रेरा में इधर फॉर्म 3 में 70 से नहीं देते, अनसिक्योर्ड लोन्स को भी नहीं दे सकते। अनसिक्योर्ड लोन को भी 70 में रेरा में दिखा के नहीं। सर आप फॉर्म 3 पे कुछ, मुझे भी तो समझना पड़ेगा। तो फॉर्म 3 जो डिवाइडेड है, खाली मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। टेबल ए जो है इट इज फॉर द एस्टिमेटेड कॉस्ट, कि मेरा एक पूरा प्रोजेक्ट बनने को कितना खर्चा लगने वाला है, तो बाइफरकेटेड इनटू वेरियस हेड्स। टेबल बी है जो इनकर्ड हो गया। टेबल सी, हाँ जो खर्चा आपने कर दिया, और मर्केंटाइल सिस्टम में टेबल सी मर्केंटाइल सिस्टम, मर्केंटाइल है मतलब आपके पास स्टील आ गया, 50 लाख का स्टील आ गया, स्टील का बिल बन गया, भले उसको पैसा नहीं दिया है, बट फॉर्म 3 के लिए मेरा खर्चा है। स्टिल नहीं आ रही, मैं पेमेंट दे दिया एडवांस, तो भी आएगा। तो खर्चा आएगा ही ना। नहीं पेमेंट दे दिया उसको, माल आना बाकी है तो इनकर्ड में वो सर कवर होता है। अब वो क्या है कि आपका नहीं सर यू हैव टू ओपिनियंस इन नहीं आएगा। You have two opinions. One is कि provided it is for the project and you have details from the management कि this particular amount is incurred. हम लोग एसएमएस में प्रैक्टिस करते हैं, तो इतना हमारे पास भी श्योरिटी नहीं रहता है कि भाई यही प्रोजेक्ट का पैसा दिया कि दूसरे प्रोजेक्ट का पैसा दिया है। तो हम क्या करते हैं कि नहीं, हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार आदत दिया तो लाइफ टाइम चलेगा। तो हम बोलते हैं नहीं, बिल आएगा तभी जमा ड्रॉ देंगे, बट एज पर लॉ ऐसा है कि इट इज इनकर्ड। So if you have any amount which has been paid for the purpose of this particular whole activity, for the purpose of the project, and which is in the preview of that particular expenditure, which is allowed to be withdrawn, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये सिचुएशन मेजोरिटी कहाँ आती है? कॉन्ट्रैक्टर के साथ। कॉन्ट्रैक्टर को तो आपने 1 करोड़ दे दिया है, उससे बिल नहीं लिया क्योंकि 18% जीएसटी है, 18 लाख रुपया मैं उसको दूंगा तो मेरे को बिल देगा। सो ये कॉन्ट्रैक्टर को एडवांसेस देते तब वो इशू चलता है बुक्स में मेजोरिटी। सेकंड, आपकी अगर विड्रॉल लिमिट शॉर्टफॉल है तब हम वो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट को हाथ लगाते हैं। लेकिन एडवांस में भी जीएसटी है ना, नहीं जाता। नहीं एडवांस किसको? कॉन्ट्रैक्टर को दिया एडवांस, बिल नहीं लेगा जीएसटी, एडवांस के ऊपर भी जीएसटी है ना, तो वो लेगा ना, वो उसका हेडेक है। क्या तो अपना जीएसटी बताया, एडवांस तो जीएसटी तो वैसे भी करेगा। उससे बिल एडवांस पैसा दिया, अच्छा वो भरेगा, वो भरेगा, वो तो बोलेगा मोबिलिटी एडवांस है ये, वो फलाना नाम दे देगा, बहुत कुछ नाम देगा वो। अपने लिए खर्चा हो जाएगा एडवांस इनकर नहीं, अभी हम खर्चा नहीं बता रहे, वो 1 करोड़ इनकर करके ले सकते हैं। अब एसएमईस में नहीं लेते हम लोग, मतलब छोटे बिल्डर्स में नहीं लेते, क्योंकि अभी आप बताओ कि आप कैसे प्रूव करोगे कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इसने ये पैसे दिए। सिंगल बरोबर है, सिंगल प्रोजेक्ट है तो चलेगा, 2-3 रहेगा तो तकलीफ नहीं, सिंगल रहेगा तो भी हम लोग नहीं लेते। प्रोपराइटर है तो नहीं लेते। मैं तो सिंपल, मेरा तो सिंपल वे है, मैं बिल्डर को पूछता हूँ आपने पैसा दिया है, वो दिखाने का है तो सिर्फ पैसा दिया है वो ही दिखाऊंगा, या बिल के हिसाब से दिखाना है तो बिल के हिसाब से दिखाऊंगा। आप मुझे बोलो, मैं वो हिसाब से एक बराबर है, दिखाऊंगा, वो प्रोजेक्ट खत्म होने तक मैं वही दिखाऊंगा। बराबर है, एडवांस या तो बिल के नहीं लेना पड़ेगा, समझा? तो आप मुझे बताओ आपके हिसाब से, लेकिन ये दोनों के एक ही करूंगा। आप बोलोगे इनकट भी बताओ और एडवांस भी बताओ, दो तो नहीं मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हूँ, मैं मिड ऑफ द प्रोजेक्ट में चेंज कर देता हूँ।
उसका तो गलत हो जाएगा। विड्रॉल पावर नहीं है तो। मतलब मैं लेकिन खाली मर्केंटाइल कि सिस्टम अगर बड़ा पेमेंट दिया तो अपने को विड्रॉल दिखाएगा तो वो ले सकता है नहीं हमें भी नहीं करता एडवांस। ये उसको जस्टिफाई करना टफ जाएगा। जैसे सर बोल रहे थे ना, वो अलग प्रोजेक्ट के लिए दूसरी जगह काम चल रहा है या पर्सनल एडवांस हो सकता है, मे भी बिजनेस रिलेटेड वो कस्टमर से जो रहेगा जिसको दिया उससे लेटर ले लेंगे तो सर आप कितनी बार हर एक क्वार्टर में मंगाओगे? एवरी क्वार्टर ऑडिट। सर अपने को लाइफ इजी करना है तो मर्केंटाइल ही करते हैं। बोल रहा हूँ, दिस इज नॉर्मल डिस्कशन कि मतलब मेन थिंग इज कि एवरी क्वार्टर Incurred. अपने को देना है, बराबर है। अभी आप बोल रहे हो कि वो इनकर्ड है, तो वो इनकर्ड के लिए कि सर आपको पेपर मांगना पड़ेगा, वो क्या बोलेगा, अरे पेपर भी तुम्ही बना के दो, मला येत नाही बनायला, हे काय लिहायचं? नहीं तो ले या लेजर कंफर्मेशन दिया तो भी नहीं चलेगा। हाँ, लेजर लेंजर कंफर्मेशन में कैसे चले जाएगा कि आप अगर पेमेंट मिला उस जो भी लेजर टोटल नहीं बट प्रोजेक्ट के मैं लिए है वही बोल कि रहा हूँ ना नहीं? सर, वो प्रोजेक्ट वाइज आपको ये देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट वाइज उससे डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि दिस पर्टिकुलर एडवांस इज बीइंग गिवन for that project. प्रोजेक्ट, दिस वाज द एस्टिमेशन एंड इतना रनिंग बिल के हिसाब से मैंने एडवांस दिया है, या फिर इसके एक हिसाब शॉट बिल के ऊपर ही जाना अच्छा है। बिल यस यस, सबसे सेफ है। मर्केंटाइल तो है ही है। मतलब डिपेंड ज्यादा टेंशन हेडेक नहीं सर है कौन से स्केल पे है, मतलब इफ यू आर वर्किंग विद एसएमईज या फिर ये, तो आपको मर्केंटाइल ही जाना अच्छा है। फिर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हैं तो वहां पे क्या है कि उनके ऊपर दूसरे 10 जन रहते हैं, तो तभी आपको बोलना पड़ेगा हाँ भाई वो भी ले ले विड्रॉल में। 10 में से 9 केस मेरा भी मर्केंटाइल ही है, हाँ, एक खाली मिक्स है। मतलब वो आपको केस टू केस डिपेंड, कभी सिचुएशन आती है वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में। हाँ, तो आपको वो केस टू केस लेना है। नहीं, क्योंकि बिल्डर आपको पूछेगा भी सर ये भी मैंने पे किया ये, हाँ मुझे तो आपको बोलने का वही बोलने का जो मैंने बोला ना आपको, वो बोलना सर ये मैं कह रही फ्रेंड था तो उसको ऐसे क्वेश्चन आया था, मैं वही सोच रहा था कि वो बोला कि ये क्यों नहीं लिया है, तो मैंने जैसे ऑलरेडी बहुत सारे जगह पे तो बार्टर ही रहता है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बार्टर रहता है, तो अभी आपने पेमेंट ही नहीं किया है वो builder। उसका और बिल्डिंग खड़ी हो गई कह है, रहा था कि अभी तक बिल आया नहीं उसका, लेकिन अपना उसमें खर्चा ही नहीं आने वाला ही है। अब बताते क्यों नहीं? मेरे पास है, लेबर चार्जेस तो कुछ फिर भी नहीं है। फॉर्म 3 में विड्रॉल था। नहीं, लेकिन खर्चा दिखाएंगे ना। वो गलत है, तेरे को उसके हिसाब से बिल मंगा लेना चाहिए। अरे बट हाँ, बार्टर માં છે ને हाँ, बार्टर में चाहिए तो भी बिल मंगाना ही पड़ेगा। 18 लाख रुपए जीएसटी। हाँ, तो वो अभी तू वो जीएसटी आज नहीं तो कल नहीं कल भरना भरना है। आज नहीं तो कल में, तो ये लोग को क्वार्टरली जैसे ये क्वार्टर खत्म होने आया ना, तो जो बड़ा ग्रुप है ये लोग के तो पीछे पड़ जाता हूँ, ये महीने में आप बिल ले लो, ये महीने में आप बिल ले लो, समझा? बरोबर। क्योंकि वो लोग एमएसएमई भी एप्लीकेबल नहीं होता है, ये महीने में बिल ले लो, ये महीने में बिल ले लो, पीछे पड़ जाता हूँ GST मैं। वाले करेंगे फॉर्म 3 क्वार्टर में। हाँ। वहाँ पे टाइपिंग होगा अभी। नहीं मेरा जीएसटी वाला ने वो घाटी का था और उसको डिटेल निकाल के लेके आया था। एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे मेरे को, एक्सप्लेनेशन दे कैसे ये तुम्हारा एक्सपेंस है। ये इतना बैंक में इतना पैसा दिखा, अपने से फॉर्म तो जो भैया में ज्यादा दिखा ना आ जाता है। ज्यादा दिखा, उन्होंने बोला ये ज्यादा क्यों आ रहा है इसने, आपने कब दिखाया जीएसटी? मेरे पास फॉर्म 3 है, लेकिन ठीक है जी, हमको क्या That is तो not a- अच्छा आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट भी लेके बैठ रहा है। वो लोग को समझाना और दिमाग उनको हमारा जो एग्रीमेंट में लिखा था कि 6वें स्लैब में पैसा लूंगा, वो तो हम कभी फॉलो ही नहीं करते। जब वो पैसा देते हैं तब जीएसटी भरते हैं। कमर्शियल में आपको प्रॉब्लम किधर है? मतलब मैं कमर्शियल में कभी। मतलब जीएसटी का प्रॉब्लम है, इतना सब वन नोटिस भी नहीं दे रहे, बाकी नहीं दे आपको रहे। रेसिडेंशियल में क्या प्रॉब्लम है? अभी तो ठीक है, तो पहले क्या बोलो, जो पहले भी चालू था ना। पहले का भी रहेगा तो सर फॉर्म 3 से जीएसटी वाला खाली आपका कलेक्शन अकाउंट और जो तो कलेक्शन अकाउंट के ऊपर ही वो लोग करते हैं ना। उस पे ही मेजर कंसंट्रेशन रहेगा, हाँ। टेबल सी पे ही ज्यादा रहेगा, बाकी किधर उसको देखने का भी जरूरत नहीं है, और देखेगा तो बोलेगा कि हवाला पे चेक कर, हवाला एक्सपेंस चेक कर, 80-20 आरसीएम है सर, हवाला तो हमको करना कौन सा है, वो तो रहेगा? एवरी ईयर आपको ही करना है। हाँ। वो तो आप खुद ही कर रहे हो ना, और लोग तो छोड़ो, अभी मार्च खत्म हो गया, अप्रैल में तो बट हम ही लोग हमारा इज बाउंड टू आस्क यू एज पर रेरा कि ये मेरे को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर। तभी हमको, क्योंकि हमको ये चीज वो नई नई चीज करना है, फॉर्म तो 3 मैं लेके क्या बैठ रहा करता हूँ, है ये ऑफिसर। महीने में डेरा का फॉर्म 3 आया हुआ है आपका? अगर नॉट है डू तो एनीथिंग, 90% तो वो जाके रेरा नहीं में है, बाकी कंप्लेंट अभी करके तो रेरा से मंगा वो ये कर सीमेंट का भी अभी सकते। ही डजंट हैव एनी पावर। 100% मैं तो बना ही है आज से। कहाँ से मैंने वर्किंग देना हमारा काम, वर्किंग तो दे दिया, अभी- खत्म हो गया। हाँ, मैं तो 100% है। कुछ है तो 80-20 में एक सैंपल वर्क नहीं बहुत जन है उधर। प्रॉब्लम आरईपी है, तो आपको प्रॉब्लम है आरईपी में, वो थोड़ा बरोबर से पहले से मैनेज आरईपी है तो ज्यादा सोचने का वो तो डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा? वो तो अपना पेमेंट रिसिप्ट दोनों तो है ना बराबर। अभी एक का क्वेरी ऐसा है कि उसने मटेरियल एक्सेस भेजा है, ईवी बिल भी बना है, तो उसको क्वेश्चन पूछा कि 10 टन माल 3 व्हीलर में कैसे गया, यहाँ तक जा रहे हैं डीप में। हाँ बहुत डीप में जा रहा है। वो तो ठीक है, दैट इज कॉमन। ये तो हम लोग को अभी इतना फास्ट क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी ऑडिट्स भी फास्टर हो रहे हैं। अभी ये चीज वैट में भी होते थे,
जब ये सी फॉर्म वाले भी होते थे ना, हाँ। तभी जब जो आईएनवी के केसेस होते थे ना, तो उसमें वो चेक करते थे कि ये कौन सी गाड़ी है, जो भी सी फॉर्म में लिख रहे हैं वो चेक करते थे, वो आईएनवी वाले केसेस में होते थे। तो हम लोग को नहीं पता चलता था कि ये ऐसे ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं, जहाँ जहाँ पे टू व्हीलर के भी लिखे नंबर, जो भी दिखता है नंबर ना उसको वो लिख ऐसा भी हुआ है। तो वो चीज अभी क्या है कि ये ई-वे बिल की वजह से क्या हो रहा है कि वो फास्टर अपने को पता चल रहा है कि ये ऐसा भी होता है, मार्केट में ऐसा भी हो रहा है। ये सब लेकिन रूटीन हो गया है। रूटीन हो गया है। ये अभी पहले जब आता था ना तभी हमको डर लगता, अभी हमको बोलते हमको पता चल गया बोगस का दुनिया भर का आ जाएगा। सब अपन रिलैक्स है अभी, सिर्फ एक ही है कि एक बार डिपार्टमेंट 2 बार जाना पड़ता है, बोला ना मैं तो प्रमोटर को भी लेके ही चल रहा हूँ, चलो आपको भी बुलाए। ठीक है। वो एक पॉइंट जो एग्रीमेंट में बात किया ना, एडवांस नहीं ले सकते ट्रिपल, उसमें एक क्लॉज ऐसा डाल दे कि जब तक रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं आता है तब तक एक डिपॉजिट कंसीडर किया जाएगा, और द मोमेंट रेरा रजिस्ट्रेशन आ गया वो अमाउंट हम लोग B-AAA में और रेरा रजिस्ट्रेशन का कोई कनेक्शन नहीं। मैं समझा दो, मीटिंग का तो मैंने तो बाद में हाँ कैमरा बंद हो जाए। तो उसको बुलाना पड़ेगा बंद करने के लिए। अभी वैभव कुछ क्वेरीज या डिस्कशन? ठीक है, ओके। तो आज today's meeting let's conclude it. I am very thankful of Shashank for arranging whole meeting today's in a very short span of time, and to all the members who have come in a very short span of time कि shorter notice में ये meeting arrange करना पड़ा, and इतने सारे public मतलब members आए हैं attend करने के लिए, and thankful I am thankful of Shashank and as well as all the members for giving and discussing on each topics. Thank you. Thank you. Advance है ना advance? Registration के time पे advance कस्टमर क्या है?